وعلیکم السلام. شیخ ابو زید ضمیر صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. آپ کی آواز کافی سلو آ رہی ہے حضرت. جی کہیے. ابو زید ضمیر صاحب، اصل میں میرا نام آفتاب ہے، اور ایک چھوٹا سا یعنی آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرنے کی نیت سے فون نہیں کیا میں نے. ایک چھوٹا سا خالی اشکال ذہن میں تھا آپ کے ایک بیان پہ، جو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اہل حدیث مذہب کو کس طرح آپ نے اختیار کیا ہے. تو اس نے آپ نے اجمالاً یوں کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک بات آپ نے پیش کی تھی غالباً فضائل عمل کی، برابر، کہ وہ ایک آپ وسلم خواب میں آئے، آپ وسلم ابر میں آئے بادل میں، اور اس عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور اس سے اس کی سوجن چلی گئی. تو میں وہ ویڈیو سن رہا تھا کل ہی، تو پھر آپ نے کسی عالم سے جا کے اس کی تحقیق کی، تو عالم نے کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے آ سکتے ہیں. پھر عالم نے آپ کو مثال دی کہ عیسیٰ السلام بھی جو ہے وہ آئیں گے. تو آپ نے ان سے سوال کیا عیسیٰ السلام کیا فوت ہوئے ہیں؟ تو اس پر وہ کچھ خاموش ہو گئے. تو یہ آپ کا میں نے سنا تھا، اور سارے لوگ، بہت بڑا مجمع بھی تھا ماشاءاللہ. تو میری ایسی خالی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت برا نہیں ماننا، بڑے میں چھوٹا ہوں، کہ تحقیق آدمی مکمل کر کے موقف بدلنا چاہیے کہ ادھوری تحقیق بدلنا چاہیے؟ آپ سمجھ؟ ہلو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی تحقیق مکمل کر کے موقف بدلے کہ ادھوری تحقیق بدلے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے، عالم صاحب سمجھا نہیں پائے، آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیتے، یا آپ دیوبند میں لکھ کر تحریر بھیج دیتے کہ بھائی ذرا بتا دیں یہ کیا مسئلہ ہے. اور میں جہاں تک وہ تحقیق کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں کیا؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق تو ابھی الحمد للہ. ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی صاحب. جی، کیا نام بتایا اپنا آپ نے؟ آفتاب نام ہے. آفتاب. آپ بھی ایک مسئلہ اگر آپ کو کوئی پوچھتے ہیں کسی عالم سے، جی، کیا آپ سارے عالموں سے پوچھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، ایک عالم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں؟ عمل کرنا ایک مختلف بات ہے، موقف بدل دینا کسی ایک عالم سے پوچھ کے یہ بالکل الگ بات ہے. آپ دونوں بات کو غلط ملت کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ عمل کرنا. ایک آدمی اگر بریلوی ہے جی، تو اگر اس کو کوئی دیوبندی عالم کوئی بتاتا ہے، کوئی بات یا کوئی تبلیغی بھائی بتاتا ہے، دیوبندی بھائی بتاتا ہے، جی، تو کیا وہ سارے بریلوی علماء سے پوچھے گا یا اطمینان کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے، میں آپ ہی کا جواب دوں. ایک آدمی بریلی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک آدمی دیوبندی ہے. تو دیوبندی آدمی اگر بریلی ہونا چاہتا ہے اور اس نے کسی ایک دیوبندی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بتا نہیں پایا، تو یہاں عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، پورا موقف بدلنے کا مسئلہ ہے کہ اس نے ایک آدمی سے پوچھ کے اپنا موقف ہی بدل دیا. حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی تحقیق. اتنی سی بات نہیں ہے. اب 1.5 سال تک میں انتظار میں رہا کہ جوابات اس کے ملیں گے. تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا ابو زید ضمیر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بڑی آسان سے آپ تحقیق کر لیتے. تو یہ واقعہ آپ کو تو امام کو اطمینان ہو گیا نا. نہیں، آپ کو میری ایک بات سن لے آپ چھوٹی سی. میں خالی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. بہرحال آپ کو جو بھی اختیار کیے ہیں مذہب، مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ آپ نے سر عام جو ہے وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی کتاب پر آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا وہ اڑایا. میں خالی آپ کو یہ بتا دوں اطلاع کے لیے، اور آپ کو واٹس ایپ پر میں اسکین بھی بھیج سکتا ہوں. یہ واقعہ امام بشکول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، القربۃ رب العالمین بصلاۃ والمحمد مسلم، صفحہ نمبر 95 پر. اور امام بشکول رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جن کو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ فقیہ محدث، یعنی ان کے بارے میں بڑے القاب پکارے ہیں سیار عالم النبلا کے اندر. اسی طرح یہی بالکل واقعہ آپ کو امام حیشمی بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. اس کتاب کا نام ہے الدور المنجود فی الصلاۃ والسلام علی مقام المحمود، صفحہ نمبر 246 پر. یہی واقعہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی نقل کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جی، میں نے جو بھی عالم صاحب سے پوچھا تھا جی، اور انہوں نے جو جواب دیا مجھ کو، وہ میرے لیے تحقیق کا شروعات بنی. آپ نے وہ جواب سنا ہوگا، اور ابھی میں خود بھی آپ سے بتا رہا ہوں جی، اس وقت میں مجھ کو احساس ہوا کہ نہیں، تحقیق کرنا چاہیے. ایسی جی، الحمدللہ، اچھی بات ہے. دیکھیے، میں نے اس میں کہی نا، جی، جی، کہی ہوگی میں نے بات. یہ آپ نے کہا. ہاں، وہاں میں نے فوراً اس کے بعد میں چینج ہو گیا، ایسا نہیں کہا نا. جی، میں نے کہا کہ اس وقت مجھ کو احساس ہوا کہ تحقیق کرنا چاہیے. جی، وہاں سے میں نے تحقیق شروع کی، اور کرتے کرتے الحمدللہ آج میں الحدیث ہوں. جی، الحمدللہ. میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ تحقیق کی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس واقعے پہ آپ نے اشکال کیا، وہ واقعہ تو میں آپ کو کتنے سارے حوالے آپ کو پیش کر سکتا ہوں حضرت، لیکن آپ نے جو ہے آپ کو بیان کرنا چاہیے. دیکھیے، جو بات میں نے اس سے کہی آپ اس کا گفتگو کر رہے ہیں،
اور جو بات میں نے عالم صاحب سے پوچھی، انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ جی تو یہ جو بات انہوں نے کہی تھی، کیا آپ متفق ہیں؟ دیکھیے یہ بات سے تو متفق میں آپ بات سنیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو میں گئے، سوال پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی بات آپ کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کی بات سے آپ اس لیے متفق نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے انہوں نے آپ کو، جی میں متفق نہیں ہوں گا اس بات سے، اس لیے کہ تشفی بخش جواب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں موقف بدل دوں گا، آگے تحقیق نہیں کروں گا۔ کیا تشفی نہیں ہے؟ تشفی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ان سے سوال کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فوت نہیں ہوئے، اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا، وہ جواب ان کا جو ہے نا ادھورا تھا، وہ آپ کو مطمئن نہیں کرے گا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ نے موقف بدلنے کے لیے اس اور تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر سن کے دیکھیے، ایک عالم ہے، اچھا آپ مجھ سے یہ سوال کریں، میں آپ کو اس کا جواب یہ دے دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے، سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں آپ میری بات سمجھ لیں، میں خالی آپ کو اطلاع دے رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے جب وہاں بیت المقدس میں نماز پڑھی تو مجھے بتائیے کہ وہاں پہ خالی عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنے تھے، یہ سارے انبیاء بنے تھے، آئے کہ نہیں آئے موت کے بعد بھی؟ گفتگو میں ساری باتیں طول پکڑیں گی، اور آپ نے خود جیسے کہا کہ میں فون پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں بحث کر بھی نہیں رہا تھا، میں خالی اس کی مزید میرے پاس امام یعقوبی وغیرہ کے حوالے تھے، اور میں آپ کو ایک بھی بتا دوں، سنیے، بولنا چاہ رہے ہیں تو پھر بولتے رہیے، میں آخر تک سنتا ہوں۔ خالی ایک چیز آپ اور بھی سن لیجئے، یہی اگر آپ یہ آپ کا موقف ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے بات کو، آپ تو آپ ایک بات ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ صرف وہ ایک بات تھی، دیکھیے آپ نے میں ایلریس ہو گیا، اسی وقت آپ نے ایک ہی بات پیش کی حضرت، تو اسی پہ میں بات کروں گا، آپ دوسری کوئی بات پیش کریں انشاءاللہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی تحقیق کی شروعات کے اعتبار سے کہ کہاں سے مجھ کو کلک ہوا کہ ایسا ہی کسی کی بات مان نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، تحقیق کرنا چاہیے۔ جی حضرت تحقیق تو ابھی دیکھیے میں آپ کے سامنے، آپ تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بات نہیں آپ بات کاٹیں گے تو میں بات نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بولیے۔ میں نے اس وقت مجھے احساس ہوا، جی یہ احساس ہوا کہ پہلے جیسا معاملہ چلتا تھا جی کہ عالم صاحب بول دیا ہم مان لیے، جی تو ایسا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اگر میں ان کی وہ بات مان لیتا جی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے ہیں، جی تو اگر اسی مجلس سے میں اٹھ کے چلا جاتا تو اسی عقیدے پر اگر موت آتی تو مر جاتا جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، جی اور فریاد کسی کی ہے اس کی پوری کر سکتے ہیں، کسی کو شفا دے سکتے ہیں۔ اچھا تھوڑا مجھے بولنے دینا حضرت اس بات پہ۔ ہاں نہیں، ہاں بعد میں چلیے آپ۔ اور جی یہ جو احساس مجھ کو اس وقت میں ہوا، یہ کہ بس عالم کے بعد آنکھ بند کر کے یہی مان نہیں لینا چاہیے، یہ بات میں نے کہی ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہ اس سے بات سے میں ایک دم اپنا میں نے موقف چینج کر جی دیا۔ بالکل انشاءاللہ آپ کی یہ بات 100% صحیح ہے۔ دیکھیے کسی بھی آپ کی بات 100% صحیح ہے، یہ ایک موضوع تقلید کی طرف چلا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ ٹھیک ہے، آپ اس وقت آپ نے بات کی تحقیق کی اور آپ نے باقی اور وجوہات بھی تھیں آپ کے موقف بدلنے کی، لیکن اس سوال میں آپ نے صرف ایک ہی وجہ بیان کی تھی، اور میں اس پہ اس لیے کہہ رہا تھا آپ کو کہ موقف بدلنے کے لیے اگر یہی ایک واقعہ تھا آپ کا تو اس کی آپ کو مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ میں نے حوالے بھی دیے، اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر بھی آپ سنیں، آپ سورہ یوسف پڑھیں گے نا، سورہ یوسف کے اندر جو آیت نمبر 24 ہے، پہلے بھی بہت سال چکے ہیں، تو میں جان رہا ہوں جی مجھ کو یہ بتائیے کہ بریلوی حضرات جب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے دیوبند نے کیوں کتابیں لکھی کہ نہیں آ سکتی؟ اس کا میں جواب دوں آپ کو، اسی بھی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے بریلی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ سمجھے، جب بھی ان کو بلایا جائے چلے آتے ہیں، اور کرامت اور کشف جو ہے ضمنی چیز ہے، ہم اس میں کہتے ہیں اس میں نہ کلیات ہوتی ہے، نہ اختیار ہوتا ہے، اور نہ اس کے اندر دوام ہوتا ہے۔ یہ دیوبندی اور بریلی میں فرق ہے۔ بریلی کہتا ہے کہ نبی خود کے اختیار سے آتے ہیں، اور ایسے واقعات کو دوام پہ وہ معمول کرتا ہے کہ ہمیشہ آ سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ کلیات ہے اس کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا جب اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے۔ اس دونوں بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے اللہ کی مشیت سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ دیکھیں بریلی اور دیوبندی کا میں آپ کو فرق واضح کر دوں۔ میں ایک مشیت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہاں تو بریلوی حضرات جو قبروں سے جا کے مانگتے ہیں بزرگان دین سے، جی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ دے سکتے ہیں۔ نہ آپ سنیے، بالکل آپ کی بات تو بہت وجہ ہے، میری آپ بات سمجھیں۔
बरेली ये कहता है कि अल्लाह ने इनको अताई एक पावर दिया है, हम उस अताई पावर के मुनकिर हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने किसी को कोई पावर अता नहीं किया। जब वाकयात बरेली की किताबों में इसी तरह से मिलते हैं और ऐसी वाकयात देवबंदी किताबों में मिलते हैं, तो अहले हदीस हजरात ये अकीदा बनाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बरेली भी सेम है और देवबंदी भी सेम है। बरेली उन वाकयात से ये अकीदा पकड़ता है कि बुजुर्ग ने खुद कर लिया और अब बुजुर्ग को वो पावर अता हो गया, और हम कहते हैं कि बुजुर्ग ने खुद भी नहीं किया, ना उनको वो पावर अता हुआ, बल्कि अगले ही पल में वो बेबस हैं। तो हमें इसमें कुदरत नजर आती है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जी पूछ रहा हूँ, अगर एक आदमी, मेरा शर्ती सवाल है, जी बोलिए। अगर एक आदमी ये अकीदा रखे कि अल्लाह चाहे तो ये साहिब कब्र हमको औलाद दे सकते हैं और उनसे मांगे, तो ये जायज है? अल्लाह चाहे साहिब कब्र हमको औलाद के क्यों देगा? आप मेरी बात समझें, औलाद का देना, जुमला दोहराएं। नहीं, औलाद का देना ये खुदा की एक सिफ्त है। आप बात कहीं और ले जा रहे हैं। आप मेरी बात समझें, कश्फ और करामत के जो वाकयात में कोई किसी को औलाद नहीं देता। सुनिए जी मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दें। जी। अगर एक आदमी अकीदा रखता है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो साहिब कब्र औलाद दे सकते हैं, आपका सवाल फासिद है। आपके सवाल के पीछे एक इश्काल है। हाँ, मैं उस पर वजाहत कर दूं। औलाद का देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे ले लिया है, और अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा। जी, शिफा का देना भी अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है। ठीक है, औलाद का सवाल छोड़ के शिफा पे बोलिए अब। हाँ, शिफा का जिम्मा भी अल्लाह ने अपनी तरफ से अपना खुद ले लिया है। अगर तो इसका मतलब ये है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं। आपके सवाल ठीक है, आप शिफा मानते हैं। शिफा जी बोलिए। अगर एक आदमी अकीदा रखे कि ये साहिब कब्र अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये साहिब कब्र मुझको शिफा दे सकते हैं, इसलिए उनकी शिफा मांगे, तो जायज है? ये आदमी अकीदा फासिद है ना भाई। आप बात समझे, मेरी बात समझें। कब्र में जो बंदा चला गया है, अल्लाह ताला चाहे तो शिफा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह चाहे शिफा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने कहीं किसी कब्र पे जाके साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं। एक मेरी बात सुने, साहिब कब्र का सुनना फिर लाजिम आएगा। पहले आपको समा साबित करनी पड़ेगी। नहीं, मैं एक सादा सवाल आपसे पूछता हूँ। मेरी बात समझे आप। एक आदमी मुर्दा है, वो कब्र में पड़ा है। आप उसके बाद तफसील देखिए, तफसील की अगर मुझको मैं तफसील से जवाब दूंगा। जब तफसील मुझको नहीं चाहिए तो जवाब आप देखिए। अबू जैसमिर साहब, ऐसे तो मैं आपको इजमाली सवाल करूंगा तो आपको तफसीलन जवाब देना पड़ेगा। बाद सवाल का जवाब तफसीली होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे अगर मैं तफसील मांगू तो तब मुझको आप तफसील देंगे ना। तो आपका सवाल ही तफसील तलब है। पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ताला, एक आदमी अकीदा रखे जी, अल्लाह ताला अगर चाहे हाँ, तो साहिब कब्र शिफा दे सकते हैं। फासिद है, इसलिए कि साहिब कब्र जो है साहिब कब्र का समा साबित करना पड़ेगा आपको। और साहिब कब्र की समा साबित ही नहीं है। बारे में बोला ही नहीं ना अभी। तो कैसे जब वो सुनेगा नहीं। सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए, फिर से सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आप फिर से सोचिए, और इसी पे मैं समझता हूँ गुफ्तगू को आती रहेगी। आप फिर नहीं, आप अबू जमीर साहब मेरी बात सुनिए। सवाल करना बहुत आसान है, आप जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप बात समझे, जब उसको अख्तियारी खत्म है उसके हाथ में कोई चीज का, साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन साहिब कब्र को अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि साहिब कब्र से जाके तुम शिफा मांगो। वो मर चुका है। कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं क्या? वो मर चुका है ना हजरत। जिंदा आदमी के बारे में आप कोई बात कहेंगे तो उसमें बात तफसीलात पेश की जाएंगी। एक आदमी मर चुका है तो आप कैसे कह सकते हैं अल्लाह चाहे? लेकिन वो जब मर चुका है तो आप कैसे उससे मांगेंगे, मुझे बताइए। नहीं, अल्लाह चाहे तो साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं। ये तो कैसा सवाल हो गया मालूम है जमीर साहब? ये तो बहस वाली बात हो गई, जीतने वाली। मैंने आपको साबित ही कर दिया भाई कि असल में ऐसा है ना, मसला ऐसा है कि अख्तियार जो है ना, बरेली अख्तियार के साथ मानता है, हम अख्तियार के मुनकिर हैं। आप बात को नहीं ले जाएं। ऐसे वाकयात जो फज़ाइल अमाल में है ना, ऐसे सैकड़ों किस्म के वाकयात इमाम ज़हाबी ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखे हैं, हिलवतुल औलिया में नकल हैं, अल बिदाया वल निहाया में नकल हैं। आप उनको क्यों नहीं वाज़े करते लोगों के सामने? मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लाह चाहे, आपने कहा ना कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जी, अल्लाह चाहे तो साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकता। साहिब कब्र जो है वो बेअख्तियार हो पड़ा है, उससे तो आप अभी जो है 5 रुपए भी नहीं मांग सकते। आप ये कहें कि आप ये सवाल करें, आपका सवाल मैंने इसलिए फासिद कहा कि जो आदमी की कुव्वत ही खत्म है सुनने की, समझने की, उस आदमी से आप कह रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो ये मुझे साहिब औलाद देगा। वो किस बुनियाद पे आप उसके पास जाके साहिब औलाद मांग रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। जब उसकी सुनने की, समझने की और सारी चीजों की खत्म है। मैंने एक शर्तिया सवाल आपसे पूछा, इसकी तफसील करें आप।
इसकी तफसील करें, किस तरह से वो दे सकता है? मतलब जब वो सुनेगा ही नहीं मेरी बात को, कुछ करेगा ही नहीं, तो कैसे उससे मांग लिया? भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अल्लाह, एक मेरी बात सुनिए, अल्लाह के अलावा, दे सकता है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। और जो मुअज्जजात वगैरह पेश आते हैं ना, उसमें कोई मांगता नहीं है गैरुल्लाह से। उस नौजवान ने ये नहीं कहा कि या नबी अलमदद आ जाओ अब्र के अंदर। वो दुरूद शरीफ की कसरत पे अल्लाह ने उनको भेज दिया आप सल्लम को। और ये आप सूरह यूसुफ पढ़ेंगे, उसमें लौला अन बुरहान रब्बी की तफसीर पढ़े आप इब्ने कसीर के अंदर, उन्होंने यूँ लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आ गए जब हजरत जुलेखा से आप भागे। आप समझे? हजरत याकूब कहाँ पर है, कहाँ आ गए? तो आप जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह चाहे तो क्या साहिबे कब्र शिफा दे सकते हैं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि साहिबे कब्र से शिफा मांगना शिर्क है। और मौजज़ात और करामत के अंदर मांगा नहीं जाता है, वो खुद कोई चीज हो जाती है। आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। अगर वाकई में वो बुजुर्ग, वो नौजवान, आप अल्लाह की कुदरत के बारे में बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप अल्लाह की कुदरत को अलल इतलाक इस तरह से मानते हैं कि कोई भी अकीदा कुछ बना ले कि अल्लाह चाहे तो। बिल्कुल गलत। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपका सवाल, आप मेरे सवाल, आप बात समझिए। अब मुझे बहस की बात होगी ना तो ऐसे बहस तो बहुत लंबी होगी। आप समझिए, आप सवाल ये कर रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो क्या साहिबे कब्र शिफा दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि ये आप साहिबे कब्र से जाके मांगेंगे इस अकीदे से कि अल्लाह चाहेगा तो ये मुझे शिफा दे देगा, ये मांगना शिर्क है। और करामत और कश्फ में कहीं अकीदा बना के कोई चीज को मांगा नहीं जाता। उस नौजवान ने ये नहीं कहा कि या नबी आ जाओ अब्र के अंदर, मेरी माँ बीमार हो गई, उसका चेहरा काला हो गया। अगर वो इस अकीदे के साथ नबी को पुकारता तो वाकई शिर्क होता। आप बात को समझें। आपका भाई जी, साहिब कब्र से मांगना शिर्क आपके नजदीक बात है? थोड़ा आवाज थोड़ी स्लो आ रही भाई, आप क्या बोल रहे हैं? साहिब कब्र से मांगना हाँ, शिर्क है, बिल्कुल शिर्क है। आपके नजदीक वाकई मतलब मुसल्लम की हुई आपका अपना अकीदा है? ये देवबंदी हजरात तमाम देवबंदी हजरात देखिए साहिबे अब कब्र से मांगना शिर्क है, ये बिल्कुल मुसल्लम अकीदा है। साहिबे कब्र से क्या, दुनिया के अंदर भी जो आदमी जिंदा है, बात चीजें जिंदों के अख्तियार में है, बात उसके अख्तियार में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके पास आऊँ, कहूँ अबू ज़ैद ज़मीर साहब जरा मुझे 5,000 की जरूरत है, मैंने मांगा गैरुल्लाह से है, लेकिन ये शिर्क नहीं है इसलिए कि आप 5,000 दे सकते हैं, मैं उधार की बुनियाद पे मांग रहा हूँ। लेकिन मैं आके कहूँ कि अबू ज़ैद ज़मीर साहब आप जो है मेरी वाइफ को लड़की नहीं हो रही है, आप लड़की दे दें, तो ये कुव्वत खुदा के हाथ में है, इस पे इंसान का कोई अख्तियार नहीं, ये शिर्क हो जाएगा। आप गलत मलत ना करें। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। जी पूछिए। अगर मैं कोई दावा कर दूं इस तरह से तब बोल सकते हैं आप, मैं अपनी तरफ से कुछ बहस करूं तब आप बोल सकते हैं। हाँ पूछिए ना। सवाल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। आपका अकीदा इस बारे में क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। साहिबे कब्र से मांगना, सुनिए, साहिबे कब्र हमारे काम बनाते हैं, ये अकीदा रखना शिर्क है। ये सोचकर भी शिर्क है कि अल्लाह चाहे तो ये काम बनाएंगे। वजह इसकी मैंने बता दी कि बरेली हजरात अताई पावर के, अताई कुदरत के, अताई तसर्रुफ के कायल हैं। हम अताई कुदरत, अताई तसर्रुफ, अताई पावर के मुनकिर हैं। हम कहते हैं कि ये कोई पावर उनको अता नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभार खुदा अपनी कुदरत का ज़हूर उनके हाथ पर कर दे, किसी के सामने वो जाहिर हो जाए, ये खिलाफ आदत और खिलाफ आदत बात है, जिसको खरके आदत भी कहते हैं। ये नबी के साथ पेश आए तो मौजज़ा है, गैर नबी के साथ पेश आए तो करामत है। और इसमें न वली को अख्तियार है, मौजज़े में नबी को अख्तियार नहीं है। तो ये बात आप खलत मलत ना करें। बरेली अताई पावर मांगता है, वो ये समझता है कि बुजुर्ग को अल्लाह ने पावर दे दिया है, अल्लाह ही मुझे औलाद देगा, लेकिन बुजुर्ग को अल्लाह ने औलाद देने का पावर अता कर दिया है। हम इस अताई पावर के मुनकिर हैं। इस पर कुरान की दलील है, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का जो अपने बुतों से मांगते थे, वो भी यूं कहते थे कि असल तो अल्लाह ही है, असल तो कायनात का मालिक खुदा ही है, लेकिन ये बुजुर्गों को अल्लाह ने कुछ पावर अता किया है, जिसकी वजह से ये बुत हमारे जो है मदद करते हैं। शाह मुहद्दिस दहलवी ने हुज्जतुल बालिगा में मुस्तकिल तफसीर की इसकी। तो इस अकीदे पे आज बरेली भी है। बरेली भी कहता है कि बुजुर्ग जो हैं, सुनिए, बरेली भी कहता है कि बुजुर्ग को अल्लाह ने पावर अता किया है। और मुशरिकीन मक्का भी कहते थे कि वो हमारे बुतों को अल्लाह ने पावर अता किया है। असल जात तो अल्लाह ही की है, वाजिबुल वजूद अल्लाह ही है, और कायनात को उसने पैदा किया, लेकिन ये बुतों को अल्लाह ने पावर दिया है कुछ। और बरेली भी ये कहता है हम इस अताई पावर के मुनकिर हैं। एक आदमी अगर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करे या आपको मुश्किल कुशा माने या आप बिल्कुल गलत है। आप आगे बोलें, मैंने दे दिया, आप आगे बोलें।
یہ آپ کے نزدیک شرک ہے یا ایک آدمی عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد عرشی کو آتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ میں نبی کو پکارے، یہ آدمی شرک میں مبتلا ہے. اب آگے بولیں. اور نہ پکارے لیکن عقیدہ رکھے کہ آپ فریاد رسی کو آتے ہیں. اللہ کے بندے ابو زید ضمیر صاحب، عقیدہ جو ہے نا دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. عقیدہ جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے. جب اظہار نہیں کرو گے تو آپ کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے؟ وہ تو زبان سے کہے گا ہی نا. دل میں رکھتا ہے، زبان سے نہیں بولتا ہے. تو عقیدہ اگر دل میں ہے، جب تک اگر وہ دل میں عقیدہ رکھتا ہے ایسا کہ اللہ کے نبی فریاد عرشی کو آتے ہیں ہماری، یہ آدمی بھی شرک کر رہا ہے. آگے بولیں، اب وجاہت طلب کریں. ہاں جی، امدادیہ میں جی مکی صاحب جو ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی جی وہ لکھتے ہیں اے رسول کبریا فریاد ہے جی یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، جی سب مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اچھا ایک میری بات بتائیں، مجھے بات بتائیں. اب اصول اصل میں اس لیے میرے خیال سے کلات امدادیہ تصوف کی کتاب ہے کہ عقیدہ کی کتاب ہے؟ یہ جو جملے ہیں یہ عقیدے سے ٹکراتے ہیں یا تصوف سے؟ مجھے یہ بتائیں آپ کو علم ہوگا، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اگر عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ہیں؟ اگر عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ہیں. اللہ کے بندے میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ آپ فریاد کا نام لے رہے ہیں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت فریاد رسی پہ آپ بات کر رہے تھے نا. ہاں فریاد رسی کی آپ بات کر رہے ہیں. ایسے اگر آپ نے شرک کہا نا تو میں وہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو فریاد سے بات کر رہا ہوں، آپ اس بارے میں آپ بتائیے کہ آپ میری بات آپ سمجھیں. فریاد ہے کیوں بھائی؟ تصوف کی کتاب میری بات سنو. تصوف میں عقائد میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. ایک بات نہیں میں آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا نا حضرت. نہیں تو میں سوال تو پوچھا نہیں نا، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. سوال کیا پوچھا ابھی؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے یا رسول یا نبی اللہ فریاد، اس طرح سے انہوں نے ایک اشعار باندھا ہے وہاں پر، برابر. میں نے آپ سے اس لیے پوچھا سوال کیا ہے یہ بتائیے پہلے، اس کے بعد جواب دیجیے. آپ کا سوال تو یہ ہے نا کہ فریاد عرشی تو فریاد کرنے بولیے، اس کے بعد پورا سوال میرا کہیے، اس کے بعد چلے آپ ہی ریپیٹ کر دیجئے. ایسے سوالات تو میرے پاس عبارتیں بہت ہیں حضرت. اصل میں فتاوی نظیریہ اور نواب صدیقہ خان، حضرت المہدی، نوج الابرار. سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک مسئلے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ نے جو ہے ایک جھوٹ طرح سے پھیلا رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں جواب تفصیلی ہوگا، مجرم کی طرح ہاں نامے نہیں ہوگا. میں آپ کو صرف سوال پوچھ رہا ہوں، آپ سوال نہیں دوہرا رہے میرا، آپ جواب دے رہے ہوں. ہاں تو آپ یہی سوال کر رہے ہیں نا کہ کیا آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی فریاد عرشی کو آ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں شرک ہے. آپ نے قلت امدادیہ کی ایک عبارت پیش کر دی، برابر. اب جواب میں نے آپ کو وہی دینے گیا تو آپ بیچ میں مجھے ٹوک دیے. میں نے آپ سے یوں کہا، پہلی بات یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. پھر کیا غلط کہہ رہے ہیں میں نے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیات، آپ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کلیات امدادیہ تصوف کی کتاب ہے عقیدے کی. جی کوئی جواب ہے آپ کا؟ کیوں میں آپ کو ایسی باتیں پیش کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ سنیے نہیں آپ سن لیجئے نا. بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو بندہ ہے. بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو بندہ ہے. اگر یہ اتنی عبارت کوئی نقل کرے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو بندہ ہے، وہ آدمی شرک کی کافر ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پھر کہیے، اس کے بعد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ ہے، آپ نے سمجھے نا. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، پوری حدیث ہی پڑھ رہا ہوں نا. میں نے آپ کو خالی اس لیے بتایا کہ ایک عبارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنیے ہاں پڑھ رہا ہوں نا، سنیں گے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں تو میں پڑھ رہا ہوں نا، پوری حدیث ہی تو پڑھ رہا ہوں. آپ سنیں گے تو پڑھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ اس بندے کو ہوتی ہے جو کسی ریگستان میں جائے اور اس کا اونٹ جو ہے جس سے اس کا توشہ اور سامان ہو وہ اونٹ کھو جائے. یہ بندہ ڈھونڈ کے تھک جائے، بالآخر بیٹھ جائے کہ اب تو موت آئے گی. اس کے بعد اس کو کچھ غنودگی سی آ جائے، نیند سی آ جائے، پھر جب اس سے وہ بیدار ہو تو اپنی اونٹنی کو یا اپنے اونٹ کو سامنے پائے تو اس کی زبان سے نکلے کہ وہ خوش ہو کر کہے کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ. حدیث یہاں ختم ہے. حدیث یہاں پہ ختم ہے. حدیث اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ وجاہت نہیں ہے. اب پیش کرتے مان جاؤں گا. اب مجھے بتائیں، یہ غلبہ شوق میں ایک بات کہی ہے. اللہ کے بندے ہاں سنائیے. آپ کسی بھی عالم سے جو حدیث پڑھا ہے اس کے پاس جائیے. ارے بھائی میں نے خود حدیث پڑھا ہوں. ذرا سنو تو صحیح، درمیان میں مت بولو. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اس کے بعد ہے، آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح. کیا اخطأ من شدت الفرح. ترجمہ کریں ذرا.
खुशी की शिद्दत की वजह से वो हाँ। गलती कर गया। हाँ, तो क्या मतलब ये गलबे शौक में आदमी गलती करता है, बराबर। तो गलती है ना हो। गलबे शौक में आदमी गलती करता है, बराबर। गलबा शौक नहीं है वो, खुशी अरे की वजह से बोलने तो में उसकी खुशी गलती हो यार, गई। आप लुगत खुशी के माने क्या हुआ, गलबे शौक में ना उसने खुशी के मारे। शौक और खुशी में आपको फर्क में और खुशी अच्छा शौक ठीक है, में वो फर्क मालूम खुशी है जो ना। है ना, खुशी एक कैफियत का नाम है, ठीक है। अरे जरा सुनो तो सही, दरमियान में क्यों बोल। आप लोगों को समझाने का ज्यादा शौक है, सुनने का कम है। हाँ सुनिए हाँ जरा, बोलिए ना, आपके तो बयान सुन ही रहे हैं भाई, रोजाना सुन रहे हैं। शेख अनीस साहब फरमाते हैं जो आदमी सुनिए। बच्चा, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, शेख अनीस कहते हैं कि जो बच्चा अरे नाबालिग भाई हो मेरी उसको बगैर बात तो गुस्ल के सुनो, दफन कर दो। पूरी पूरी बात तो शेख सुनो। अनीस ने ये बात फतवा दिया, आपके बाजू में मौजूद अभी थे। ये आप तीसरी बात करेंगे तो मैं पांचवी करूंगा, आप छठी करेंगे। नहीं तो आप जो कह रहे हैं ना कि आप लोग अपनी समझाते बात ज्यादा पे हैं, समझा तो आप लोग रहे हैं। आप जी सुनिए बोलिए तो सही। बोलिए बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने खुशी की शिद्दत की वजह से गलती की। हाँ तो आपने थोड़ी देर पहले कहा इसके आगे कोई हदीस नहीं, हदीस खत्म हो गई, ऐसा नहीं, हदीस है उसके आगे। मैं आपको वो इबारत मैं आपको सही अल्लाह के, देखिए एक बात, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप बात नहीं बोलिए बोलिए, फिर मुझे आप मौका देना, फिर आप बीच में बोलते हैं, बोलिए। और आप जो कह रहे हैं कि मुझको तफसील से बात नहीं करना है, आप अपनी उसूल को भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, हदीस में भी गलती की आपने बोलने में। हदीस में आपने गलती अल्लाह की के नहीं। नबी हाँ अल्लाह के नबी पे मैंने झूठ बोला, ठीक है, इल्जाम बांधिए। मैं आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पे हैं, वो रिवायत ना कई तरह से है। अल्लाह पर रहम सुनिए सुनिए फरमाए। मैंने सुनिए अल्लाह पे अबू रहम जैद जमीर फरमाए, साहब, ये अल्लाह पे असल रहम में फरमाए, बेशक अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह रहम फरमाए। सब पे रहम करे अल्लाह, मुझ पे सुनिए, सब पे अल्लाह रहम करे। मैंने ये नहीं कहा कि आपने झूठ बांधा। हाँ जी बोलिए। आप मुझ पे तहमत क्यों लगा रहे हैं? नहीं आप जो कहने अल्लाह के नबी ने, नहीं भाई मैं जज्बाती नहीं हूँ। बोलने में गलती की, आपने ठीक है गलती की। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं सुनिए तो सही, सुनिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, चले ठीक है, आप बोलिए। तालिब इल्म है कि आलिम है? आप वैसे तो फारिग आप भी नहीं है कहीं किसी मदरसे से। पूछ रहा हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ। मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ जी। बताइए। तालिब इल्म का काम है कि वो उसूल की रियायत सुनने के एतबार से, तलब इल्म में पहला उसूल सुनना है। हाँ सुनिए, बात कर रहे हैं ना आप, तो आप तलब इल्म तो आप भी हैं, भी बोलिए। अब आपने मुझको फोन किया पूछने के लिए, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो आपका काम है सुनना। मैं तो एक मसला छेड़ा था, आपने मुझसे कई सवाल कर डाले, मुनाज़रे की शक्ल कायम कर दी। ऐसे तो मैं इबारतें लेके आता, फिर बहुत सारी मैं भी पेश करता। ये मुनाजरा नहीं है, गुफ्तगू है। जी बोलिए। मुनाजरा होता तो शरायत वगैरह सारी चीजें होती हैं। हाँ तो आपने पूछा, इफ्तार है आपकी तरफ से, और मैं जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने हदीस बयान करने में भी गलती की, ये नहीं कि जानबूझ के आपने किया या झूठ बांधा नबी। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ गलती किया। आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला वैसे ही खुश होता है जैसे वो बंदा है। माना आपने, ये तमसील है, अल्लाह की बंदों की तरह नहीं होती। मेरी बड़ी बात, अरे भाई पूरी बात तो सुनो, फिर मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना, ठीक है। तो बोलने अभी दो के बाद नहीं आप बोल दें, फिर मुझे बोलने देना। मैंने कहा क्या था? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहु अशद्दु फरहन, अल्लाह ताला उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है। तो अल्लाह ताला के लिए ज्यादा का लफ्ज वहाँ पर है अशद्दु फरहन। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला कमिसली हाज़ा रजुल या फुला की तरह आपने। अल्लाह ताला बंदों की तरह अल्लाह के अफ़आल नहीं होते हैं, अल्लाह की सिफ़ात बंदों की तरह नहीं होती, क्योंकि कुरान में है लैसा कमिसलिही शै, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, कोई चीज नहीं। तो इस हदीस में ये है कि अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा खुश होता है। अब रहा ये मसला कि इसमें बंदे, एक आदमी मसलन उसमें आपने जैसे कहा कि शौक में खुश हुआ, शौक में एक आदमी की जुबान से इस तरह की बातें हालत शौक में निकलती हैं जी। एक होता है एक आदमी पर हुक्म लगाना जी, दूसरा होता है फेल पर हुक्म लगाना जी। आदमी पर हुक्म लगाने में फर्क होता है। एक आदमी जैसे इस आदमी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जी, क्योंकि उस आदमी से गलती हो गई। उसकी अख्ता किसको कहते हैं अरबी जबान में जी? अगर आप लुगत देखें, उलमा से आप पूछिए। जी जी बोलिए। अरबी जबान में उस चीज को कहते हैं, उस गलती को कहते हैं कि आदमी का इरादा कुछ हो और उससे हो कुछ जाए जी। जैसे एक आदमी बोलने में गलतियां कर जाता है जी, इरादा कुछ होता है, जुबान से कुछ निकल जाता है। इरादा कुछ होता है, जबान से कुछ और निकल जाता है। ये बात जरा ठीक है जी, बोलिए आगे। हाँ, इरादा कुछ होता है, जबान से कुछ और निकल, जुबान से कुछ निकल जाता है। तो ऐसी गलती जो है इसको पता कहते हैं जी, बिल्कुल अरबी जबान में उसकी जी बिल्कुल। अब यहाँ पर जो उस आदमी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अख्ता मिन शिद्दतिल फर्ह,
वो चाह रहा तो कुछ बोलना है कि अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, जुबान से उल्टा निकल गया, कभी ऐसा होता है। हाँ आदमी की जुबान गलबे खुशी में ज़ौक में निकल गया। बहरहाल मुख्तसर करें इसको। सुनते रहो, जब आपको बोलना है तो आप बोलो कि मुझको मेरी बात खत्म हो जाए आपकी बात। हाँ तो मैं बोला ये मसला मुख्तसर करें, आप आगे बताएं। अल्लाह ताला रहम फरमाए आप पर। अल्लाह आप पे भी रहम फरमाए, सब पे अल्लाह। कैसा होगा भाई, आप फोन क्यों किए थे मुझको? भाई आपको मुझसे जवाब नहीं मुझे जमीर साहब, मैं ना सुन ही रहा हूँ, मैं सुन ही रहा हूँ, आपके इल्जाम ना बांधे, मैं सुन ही रहा हूँ। बीच में मैंने कल ये बोल दिया कि खाली हजरत ये बात आप याद रखना बस। जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। आप खामोश रहो। अब अगर एक आदमी से पूछा जाए कि आपसे मैं पूछता हूँ, अगर कोई आदमी पूछे कि एक आदमी यूं कहे कि मैं अल्लाह का रब हूँ और अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मेरा बंदा है, तो ये जुमला कुफ्र नहीं होगा? कुफ्र होगा जी, कुफ्र है जी। लेकिन एक आदमी इस तरह का जुमला गलती में बोल जाए, बोलना ही चाह रहा है कि अल्लाह ताला मेरा रब है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ जी, लेकिन बोलने में गलती हो जाए जी, और सामने वाला इतराफ करे या कोई आदमी वाकई इल्म वाला है बोल रहा है, अल्लाह के नबी जैसे वही के तहत बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि इससे गलती हो गई, जानबूझ के इसने नहीं कहा, तो उस पर गलती ही का हुक्म लगाया जाएगा, उस पर कुफ्र का नहीं जी। लेकिन आला कुल्ल हाल दोनों सूरतों में, दो में से एक सूरत है, या तो ये कि खता हो गई उससे, या तो जानबूझ के उसने कहा इस तरह जी। जब जानबूझ के कहा तो कुफ्र होगा जी, और अगर गलती हो गई, बोलना कुछ चाह रहा है लेकिन जुबान से कुछ निकल गया जी, वो गलती है जी। दोनों सूरतों में सही तो नहीं है ना जी। हाँ यहाँ पर ये जो कह रहे हैं जी, बोलिए। हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी, बोलिए। सख्त मुश्किल में फंसा हो आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है जी, या ऐ रसूल किबरिया फरियाद है जी, या मोहम्मद मुस्तफा फरियाद है। जिस फरियाद के बारे में ये कह रहे हैं जी, तो ये किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। हो गई आपकी बात? हो गई, और सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सवाल तो क्या आप खाली हाँ ना में पूछ रहे हैं? मैं कटघरे में खड़ा हुआ मुजरिम हूँ, आप जज हैं, मैं तफसीली जवाब दूंगा ना। आपने तफसील की सवाल पूछा, आप सवाल तो दी इसी का। अब जमीर साहब मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोल रहे हैं, उसूल ना तोड़े, उसूल ना तोड़े, मेरा बोलने का नंबर है, उसूल ना तोड़े। आप खामोश रहे हैं, आप खामोश रहे हैं, उसूल ना तोड़े, मेरा बोलने का नंबर नहीं। कोई उसूल नहीं तोड़ा, मैं तोड़ रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सुना आपकी बात ना, नहीं दे रहे ना, मैं आपकी बात सुना, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये होता है ना, उसूल मुझे सिखा रहे हैं, आप खुद उसूल तोड़ रहे हैं, आप मुझे जवाब देने दीजिए ना। तो आप मेरा ये जवाब दीजिए, मैंने सवाल देखिए, ये जो बोलते रहेंगे आप, बात है किससे फरियाद कर रहे हैं? आप बोलते रहेंगे, मैं जवाब दूंगा तो आपके बीच में टोकेंगे। जब मैं बोलता हूँ तो आप कहते हैं खामोश रहे। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे बात को। फरियाद करें, इसका जवाब देंगे कि नहीं? हाँ बोले। अरे हाँ मैं जवाब भी दे रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, आप फिर बोलते जा रहे हैं तो जवाब कैसे दूंगा? अजीब है यार। मेरी बात सुनिए, जवाब जो है तफसीली तलबी होता है। आप मुझे ये बताएं, आपने खुद अपनी जबान से इकरार किया कि आदमी की दो सूरत, फिर बोल रहे हैं आप, जवाब दे रहा, फिर बोल रहे हैं झूठ, ऐसे बात नहीं होगी, फिर बोल रहे हैं ये झूठ बोलते हैं इसीलिए बुरा। फिर झूठ तो आपने कितने बोले हैं हजरत, मैं बिहम्दिल्लाह आपको स्कैन दे सकता हूँ, आप अपने बयान में बैठ गए। अब आप जवाब दे रहा हूँ मैं, तो आप सुन नहीं रहे। आपने इतनी तफसीली बयान कर दिया, आपने तफसीली बयान किया, मैंने सुना ना, क्यों नहीं आप सुन रहे मेरी बात को? आप जो है सवाल का जवाब ये होता है ना, देखो ये होता है बेउसूली करना। आप तकरीर तो आप खुद कर रहे हैं, आपकी बात मैंने सुनी ना हजरत, आप मेरे जवाब सुनने के लिए थोड़ा वक्त देना। फरियाद किससे कह रहे हैं? अरे तो उनके दिल का इरादा आपको कैसे पता? अरे अजीब, आप हाँ ना में सवाल जवाब मांग रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने खुद ये बात कही कि बंदा बाज मरतबा उसको अख्तियार में नहीं होता, जबान से कोई और जुमला निकलता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ अबू ज़ैद ज़मीर साहब, ये होता है ना, ये होता है कि आप जो है, ये होता है कि आप जो है उसूल बहुत तोड़ रहे हैं और दूसरों को उसूल सिखा रहे हैं। आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको भी हिदायत दे। उसका जवाब नहीं देंगे तो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं सुन रहे मेरे जवाब को? क्यों नहीं जवाब सुन रहे आप मेरा? आप जवाब 50 दूसरी चीजें बोलने लगे। नहीं आप जो बोले इतनी, अच्छा एक मिनट, फालतू वक्त तो नहीं है ना। अस्तगफिरुल्लाह, आप जरा इस्तगफार पढ़ लें। आपने एक तफसीली बहस कर डाली और मुझे बहुत ज्यादा वसूल, आप बहुत ज्यादा वसूल जो है आपने मुझे सिखाया कि आप खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें। मैं खामोश रहा। अब मैं जब जवाब देने जा रहा हूँ तो मुझे आपके वसूल जितने आपने तफसीली की, जितने आपने तफसील की हजरत, आप उस तफसील का जवाब तो सुन लेना पहले, फिर पहुंचूगा मैं जवाब देता हूँ ना। मैंने अब हाँ या ना में सवाल कर रहे हैं, पूछा, हद हो गई। आप उसका जवाब नहीं, हद हो गई। मैं जवाब दे रहा हूँ आपसे, आप चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसूल तोड़ रहे हैं आप। यही है असल में आपका, देखो असल में ये होता है ना कि आप जवाब को सुनना नहीं है।
हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ बिहम्दिल्लाह कि आपने एक वाक़ये पे झूठ बोला, जो वाक़या इब्ने हैशमी ने नकल किया, इमाम बशवल ने नकल किया, नवाब सिद्दीक हसन खान ने नकल किया, आप कहते हैं कि वो वाक़या है ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्यों परेशान रहूंगा, परेशान इत्मीनान में हूँ। सारे तन बदन में आग लगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपके लिए ज़ेबा नहीं है हजरत, ये बस इतने लोग आपके लिए ज़ेबा नहीं है। हदीस हो रहे हैं, लोग तो कादियानी भी हो रहे हैं हजरत, लोग तो कादियानी भी हो रहे हैं, लोग तो मुर्तद भी हो रहे हैं। ये दलील है, लोग तो मुर्तद भी हो रहे हैं, दलील है। हदीस हो रहे हैं, लोग मुर्तद भी हो रहे हैं, दलील है। अच्छा अहले हदीस क्या हो रहे हैं, गुरबा हो रहे हैं कि जमीयत हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जमीयत अहले हदीस फतवा देती है, गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। आप जवाब, आप अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। जमीयत अहले हदीस का फतवा है कि गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। अरे आप क्या करेंगे? अब कहाँ चले गए आप? मेरे पास नहीं, तो आप इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर आप ऐसे बहस करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। अहले हदीस आप जवाब सुने, मौजू पे आए, जवाब सुने, क्यों जवाब सुने। इसीलिए हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, पास इस तरह का बात करने का कोई साफ तरीका नहीं है। हाँ। आप लोग गैर मुतालिक बात करते हैं। गैर मुतालिक बात कर रहा हूँ मैं। असल जो सवाल पूछा एक तो असल सवाल देखो, बोलते रहे आप, उसूल तोड़े बोलते रहे, आप उसूल तोड़े बोलते रहे। आपने तफसीली बहस कर डाली मेरे सामने कि शौक होता है, जौक होता है, खुशी का। आप अपनी बात में खुद फंसे हैं हजरत। आपने जो बात कही ना कि बंदे, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा बाकायदा लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा किसी को फरियाद अर्जी नहीं करते। वो उनका अकीदा बाकायदा वजाहत से लिखा हुआ है। आप उनकी एक इबारत में, एक इबारत से पढ़ के जो आपने खूब वजाहत किया, अंदर उतनी हिम्मत है ही नहीं कि आप उसका जवाब देखिए ना, आप नहीं सुनेंगे ना, आप नहीं सुनेंगे। मैं आपकी गैर इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का बाकायदा अकीदा छपा हुआ है। सुन की तो मुसीबत हुई है। मुसीबत तो यही मसला है ना हजरत, आपकी तहकीक मुकम्मल अगर होती तो आप ये ना कहते कि ये वाकया मैंने कहीं नहीं सुना। ये वाकया तो इब्न हजर कलानी के शागिर्द इमाम सखावी नकल करते हैं। इमाम सखावी का अकीदा आप उनको, आप इमाम सखावी का अकीदे पे बोले ना कुछ। परेशान हो रहे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोले ना कुछ, इस वाक्य पे आप बहस करें ना। इत्मीनान के साथ अहले हदीस इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अहलुलुद्दीन के अंदर भी ये वाकया नकल किया है। आप सबको बतकीदा कहें ना, क्यों नहीं कहते? अपनी अंदर एक चीज पैदा क्यों नहीं कहते? आप असलाफ की बातों को क्यों छुपाते हैं? या जो तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को आप क्यों छुपाते हैं? अल बिदाया वल निहाया को क्यों छुपाते हैं? आप उम्मत में क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? आप नहीं सुनेंगे, मुझको मालूम है। तो आप कहाँ सुन रहे हैं मेरी? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ तो आप बोलते मुझे नहीं सुनना है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं आपकी कई गलतियाँ निकाल सकता हूँ। आप मुझे जवाब देने दे ही नहीं रहे। आप मुझे जवाब देने दे ही नहीं रहे हजरत। आप मुझे जवाब देने दे ना। पूछा आपसे, क्यों नहीं देने जवाब दे रहे? आपने आधे घंटा मुझे चुप कराया कि उसूल से ना तोड़ो, तालिब इल्म हो। भी झूठ बोले हैं, ये भी झूठ बोले। चुप कराया ना मुझे आपने, मैं चुप रहा ना। आपका सवाल सुना कि नहीं सुना? आधा घंटा चुप नहीं कराया आपको। अरे मैं चुप रहा ना, ये झूठ चुप रहा ना। आप इतने झूठ बोले हैं कि वाकया हमें कहीं मिला ही नहीं, मैं अहले हदीस हो गया। चुप रहे। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं इसका जवाब दूं, इसका जवाब दूं? आप फिर झूठ बोले। चलो इससे जवाब देता हूँ मैं। आदमी बाज मरतबा अक्सर का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो अक्सर से मुराद अदद नहीं होती। गैर जरूरी बात आपने की, आप जवाब इतना तफसीली बहस किए। मैं कह रहा हूँ कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अकीदा उनका छपा हुआ है। आप क्यों छुपाते हैं उनको एक इबारत को लेके? सवाल पूछा हूँ, उसका जवाब। हाय हाय हाय, घर को लगी या घर की चिराग से, ऐसे कितने सारी इबारतें मेरे पास हैं। आप वाजे करेंगे? ये जो शेर है आप ही के, मैं आप ही के घर का चिराग हूँ। हाँ तो वही तो मसला है ना कि हमारे घर को आपसे आग लग गई ना। अबू ज़ैद ज़मीर साहब, असल में इसलिए ऐसा होता है ना कि तहकीक आप करें। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, आप अपने आप को मुहक्किक ना समझे, इसलिए कि हर आदमी जो है ना तालिबे इल्म है। पहले बोल चुका हूँ। देखिए आप सवाल नहीं, मेरे जवाब नहीं सुनेंगे तो क्या बात होगी? यहाँ वहाँ की बात होगी। आपसे मैंने खुद इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह की वो इबारत जो है वो तसव्वुफ के ताल्लुक से है। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छप चुका है। जब एक आदमी अपना अकीदा लिख चुका है कि मेरा ये अकीदा नहीं है, तो उसकी इबारत से आप अकीदा कैसे गढ़ रहे हैं? मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल पूछा, आप जवाब उसका नहीं दिया। हाय आपको एहसास हो रहा होगा। माशाअल्लाह। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है। एक आदमी अपना अकीदा कहता है कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा कोई फरियाद रसी को नहीं आ सकता, तो उसकी एक इबारत को आप बिला समझे तसव्वुफ की इबारत को जबरदस्ती अकीदा गढ़ रहे हैं कि नहीं इसका अकीदा यही है। आपसे पूछा, आप मुझको मालूम है, आप देवबंद में लिख के भेज देना। अगर देवबंद में तहरीर लिख के भेज दें, अगर देवबंद वाले कह दें कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा था, मैं अहले हदीस हो जाऊंगा। चलिए, और पक्का अहले हदीस हो जाता है। एक आदमी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का ये अकीदा
आप लिख के देवबंद में भेज दें। अगर देवबंद से ये जवाब आ जाए कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा यही था, तो बेशक मैं अहले हदीस हो जाऊंगा। बोलिए। की बातचीत आप लोग करोगे तो कैसे आप अबू जय जमीर साहब, मसला ऐसा है ना, मसला ऐसा है, आप अपनी बात कर लिए, ही नहीं करोगे, आप अपनी बात कर लिए, मैंने जवाब दे दिया। तसव्वुफ की इबारत को आपने अकीदे पे फिट कर दिया, ये आपकी जो है बददियानत है, बददियानत है आपकी। और वो वाकया जो आपने पेश किया, आप इमाम सखावी को पढ़ लेते, नवाब सिद्दीक हसन खान को पढ़ लेते, इब्ने जौजी को पढ़ लेते। आसानी से लोग नहीं आएंगे। हाँ, लोगों को सारी चीजें, सारे वाकयात आप छुपाते हैं। ऐसे में कई बेशुमार वाकयात ऐसे आपको पेश कर सकता हूँ। आप देखिए, आप लोग हम लोग आवाम को धोखा हजरत ना दें, मेरी आपसे गुजारिश है। आवाम के सामने पूरी तहकीक पेश करें, सलफ को ना छोड़ें। हजरत शेख जकरिया ने जो कुछ लिखा है वो सब सलफ ने लिखा है, सब सलफ ने लिखा है। हम लोगों को मश्क होती है जब तक कि आप जबान देखो, जबान से नहीं हारती अबू जमीर साहब, जबान से नहीं हारती। आप मेरे सवाल को जवाब सुनने के बजाय तफसीली आपने सवाल किया, मेरा जवाब तफसीली आप नहीं सुन रहे। तो हम लोगों को इल्म की तरबियत नहीं मिलती भाई। असल में ऐसा है ना कि अगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया जवाब बोलने के लिए जबान को चुप रखनी पड़ती है, वो कान से सुनना पड़ता है। देखिए, कान को चुप कर रहे हैं आप, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? बोलूं मैं जवाब दूं उसका? नहीं, पहले वो जवाब दे। हद हो गई, मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप सुनते नहीं है। मैंने कितना आपसे पूछा है, मैं इसलिए कितना आपसे कह रहा हूँ कि आपने हजरत, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, किसी को फरियादर्शी के लिए अकीदे के साथ पुकारना शिर्क है। और ये इबारत जो है हजरत की तसव्वुफ की है, हजरत का अकीदा छपा हुआ है। जब हजरत कह रहे हैं कि मेरा अकीदा नहीं है, तो इबारत से आपने अकीदा कैसे गढ़ा, ये इसका जवाब है। नहीं, मैंने अकीदा नहीं गढ़ा। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ने भी ऐसी बातें लिखी हैं कि हम काजी शौकानी की रूह से मदद मांगते हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा। मेरे पास इबारतों का भंडार है अबू जमीर साहब। मैंने काजी शौकानी की रूह से मदद मांग रहे हैं, नवाब सिद्दीक हसन खान की किताबों में लिखा है, मुकदमे में। इस किताब की तालीफ में एक सवाल आपसे पूछा है, मैं जवाब तो दिया ना, और आखिर तक आप उसका जवाब नहीं देंगे। जवाब दिया ना मैंने। शिर्क है, नहीं दिया आप। अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है, अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है। अकीदे सवाल सुने। अल्लाह अकबर। ये घबराहट की हंसी और कुछ नहीं। मैं घबरा रहा हूँ। किबरिया फरियाद है, अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है, फरियाद है। अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है। मुश्किल में फंसा हूँ आज। देखो असल में बोलते रहिए, मुश्किल कुशा फरियाद है। अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है। हाँ, मेरा सवाल आपको मालूम है मैंने क्या पूछा? आपने पूछे क्या आप किसी को फरियादर्शी का अकीदा रखना शिर्क है कि नहीं, मैंने कहा शिर्क है। जवाब नहीं हुआ? जवाब हुआ कि नहीं? ईमानदारी से देखिए, जीत जाए आप। मैं कह देता हूँ कि मैं हार गया, आप जीत जाए। मैं कह देता हूँ मैं हार गया, आप जीत जाए। मैंने भाई क्या पूछा आपने? जी बोलिए, क्या पूछा? पहले पूछा था क्या? देखिए, गुफ्तगू करने के लिए एक उसूल याद रखिए। पहला, हाँ बोलिए ना। आदमी जो खुद बोले और सामने वाला बोले उसको याद रखना चाहिए। अच्छा, बात करने की कुछ चीज, मैं उसी को आपको याद दिला रहा था। सुनिए, अच्छा सुनिए मेरी बात, अब उसूल तय करते हैं। उसूल तय करते हैं। आप 2 मिनट बोलेंगे, सुनिए 2 मिनट आप बोल लें, उसके बाद 2 मिनट मुझे बोलने दें। उसके बाद मैंने एक दूसरा सवाल पढ़ने के बाद पूछा। क्या पूछा था बताइए? चलिए आप अपनी भड़ास निकाल लें, आप इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। जी बोलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बोलिए। आमीन। ये जो यहाँ पे शेर मैंने जो बयान किया उनके, हाँ, उसके बारे में पूछा, ए रसूल किबरिया फरियाद है, हाँ, या मोहम्मद मुस्तफा फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। अकीदे के साथ कैसा कहना शिर्क है? तो सुनो रे भाई मेरी बात सुनो तो सही। बोलिए। बेसब्री क्यों? अरे बेसब्री तो आपने मेरे जवाब ही नहीं सुने और यूं कह दिया मैं सुनता ही नहीं। सवाल ही नहीं पूछा मैं। देखिए, फिर आप कह रहे थे सवाल पूछिए, उसके बाद नहीं आप जवाब दे रहे। आपको एहसास हो रहा होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। बहरहाल बोलिए। सुनिए, ये जो 2 शेर मैंने पढ़े, उसके बाद मैंने एक सवाल आपसे पूछा था। हाँ पूछिए ना। इतना ज़ाया कर दिया आपने, जवाब नहीं दिया। अच्छा, मैंने पूछा कि इन दोनों अशार में ये किनसे फरियाद कर रहे हैं? जी बोल दिया आपने। अकीदे के साथ ऐसे अशार कहना शिर्क है। हो गया मेरा फतवा। अब मैं कहता हूँ कि ज़ौक़ में जैसे आप सल्लम की हदीस आपने बयान हो रही है, यही तो पागलपन है। आप मैं पूछता कुछ आप बोलते। जब इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है,
इमदाद उल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा नहीं था, अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कितनी बार बोलूं आपको, कितनी बार बोलूं? शिर्क तो है, बोला ना मैंने, जवाब नहीं बना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, अरे यार क्या हो गया जी, बोलिए। जैसे 2 शेर मैंने पढ़े हैं। हाँ, फिर से पढ़े। हाँ, किसी से खिताब है ना, खिताब। अब फिर से पढ़ता हूँ मैं शेर, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है, अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है, अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है। 10 बार बोलूं आपको? क्या हो गया है जमीर साहब आपको? हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 50 बार से 10 बोलेंगे। अच्छा, सवाल के सारे हक आप भी को हैं। हाँ ना में जवाब मांग रहे हैं। आप अदालत के जज हैं, मैं मुजरिम हूँ। बोले, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि क्या ये किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जुमला अगर लिया जाए तो ये नबी से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन इनका अकीदा ये नहीं है, इनका अकीदा ये नहीं है, इनका अकीदा छपा हुआ है। ये गलबे शौक की बात है, तसव्वुफ की बात है। मैंने आपको बता दिया, इनका अकीदा छपा हुआ इमदाद उल्लाह मक्की मुहाजिर का। एक आदमी कह रहा है कि मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा नहीं है, आप उस पर अकीदा फिट कर रहे हैं जबरदस्ती। उसकी जबान से कोई जुमला निकल गया बेअख्तियार, तो उस पर आप क्यों अकीदा फिट कर रहे हैं? अकीदा आपसे कैसे अखज़ कर रहे हैं? उससे कहाँ से उसूल मिला आपको? आपसे जो गुफ्तगू हो रही है, लोगों ये ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा काम आएगा हम लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल पूछता हूँ। हाँ, माशाअल्लाह। आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ। मैंने कहा कि जो शेर उन्होंने लिखे हैं, बार पूछेंगे यार, जितनी बार आप गलत जवाब देंगे उतनी बार। इस शेर के अंदर इमदाद उल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह फरियाद के जुमले नबी की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अकीदे के साथ ऐसे जुमले मंसूब करना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कितनी बार जवाब दूं हजरत, इतनी वजाहत से? और मैं कह रहा हूँ कि ये गलबा शौक तसव्वुफ की बात है, उनके अकीदे छपे हुए हैं। क्या नहीं दिया जवाब आपको? क्या नहीं दिया? बोले जरा वापस से, क्या नहीं दिया मैंने जवाब? बोले। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया अब तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह यूं कह रहे हैं कि या नबी फरियाद है, मुश्किल कुशा फरियाद है, मुसीबत में फंसा फरियाद है। इस तरह से जुमले अकीदे के साथ कहना शिर्क है। आपका सवाल ये था किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि नबी की तरफ ये फरियाद मंसूब कर रहे हैं, नबी से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन अकीदे से इस तरह की फरियाद करना शिर्क है। और इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है कि आपका ये अकीदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आप इबारत से अकीदा क्यों अखज़ कर रहे हैं? मुझे ये आप समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। अब 2 चीजें हैं, देखिए 3 चीजें। इसमें आपने 2 बातें इसमें कही। हाँ। एक ये कि मुहाजिर मक्की साहब जो हैं, हाँ। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद कर रहे हैं। अब आधी बात ना पेश करें, मेरी आधी बात ना पेश करें, आधी बात ना पेश करें। मैंने पूरी जो बात कही वो रिकॉर्ड भी हो रही है, पूरी बात पेश करें, मेरे पास पूरी बात पेश करें। ज़बान के जुमले से उन्होंने ये बात कही, इस तरह से अकीदे के साथ जुमले इस्तेमाल करना शिर्क है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लफ्ज़ या रसूलुल्लाह का कहना क्या है, तो आप उसका जवाब नहीं दिए। अगर बगैर अकीदे के कोई आदमी या रसूलुल्लाह कहता है तो ये शिर्क नहीं है। इस मसले की आप जानते होंगे वजाहत। गुफ्तगू नहीं है अभी इससे क्या बात है? मुताबिकत में आदमी दलील मिसाल दे सकता है, उससे नहीं। अरे भाई सुनो, हाँ, फरियाद जो है, हाँ, अल्लाह के सिवा आपने कहा किसी और से फरियाद करना, आपने कैद नहीं लगाई थी। हाँ हाँ, क्या कैद नहीं लगाई? क्या कैद नहीं लगाई? गलबे शौक की। अल्लाह अकबर। अब ये आपको बताना पड़ेगा, ये तो आपने खुद बयान कर दिया अल्लाह के नबी की हदीस से कि खुशी में आदमी नहीं चाहता था, ऐसा जुमला निकल गया। तो ये उसूल तो आपने खुद बयान कर दिया, मुझे कैद लगाने की क्या जरूरत है? वो गलती थी कि नहीं थी? ये मैं कह रहा हूँ कि ये गलती अगर अब इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर अगर अकीदे के साथ कहा है तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे छपे हुए हैं, किताबें छपी हुई हैं, तो क्यों आप एक इबारत का अकीदा अखज़ कर रहे हैं? आप पूरी उनकी बातों को क्यों नहीं ले रहे? आपने ये तो कहा कि मुहाजिर मक्की साहब ने, आपके कहने के मुताबिक वो गलबे शौक में कह रहे हैं। तसव्वुफ का मतलब क्या होता है आपको पता है? कुरान करीम में तसव्वुफ को तजज़िये से जिक्र किया गया और हदीस में एहसान से। मकाम एहसान क्या है? मकाम एहसान क्या है मालूम है आपको? मकाम एहसान रसूल के साथ है, अल्लाह के साथ है। अरे मकाम एहसान अल्लाह ने फरमाया तू नमाज ऐसी पढ़
کہ गोया तो अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह के साथ है या रसूल के साथ है? मैं तसव्वुफ की गलबे शौक की बात कर रहा हूँ। मकाम एहसान क्या चीज है मकाम एहसान कि कोई चीज का आदमी, गुबूबियत का आदमी अल्लाह आंखों से देखता है। अल्लाह से जुड़ा है कि रसूल से? अच्छा, गुबूबियत का उसको मुशाहिदा हो रहा है कि नहीं मकाम अरे एहसान? भाई मकाम तो फिर शिर्क नहीं आएगा, शिर्क लाजिम नहीं आएगा। मकाम एहसान की बात यहाँ नहीं हो रही है। हाँ, तो फिर आप जैसे बातों में न फंसाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। हाँ जी बोलिए, आपका सवाल ये था अबू ज़ैद ज़मीर साहब, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैं समरी कर देता हूँ बात की। देखिए सुनिए बात की समरी कर देता हूँ मैं। आप 2 मिनट सुन लीजिए भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपका छोटा सा मैं भाई हूँ, मैं छोटा सा आपका भाई हूँ, मेरी गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए, सिर्फ 2 मिनट। नहीं, मैंने आपको उसके बाद भी आपकी बात अरे यार, ऐसा नहीं। मैंने आपको सवाल जो फोन जो किया था ना, जिस वाक्य के लिए, उस वाक्य की आपने कोई तस्दीक नहीं की। मैंने कितने हवाले दिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यही वाक्य नवाब सिद्दीक हसन खान ने नकल किया है, तो फिर आप अहले हदीस छोड़ दें अब मजहब। अरे बहुत सारे और चीजें हैं, ये मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं इबारत लेके बैठ जाऊँ, मुझे कल फोन करो, मैं 100 इबारतें पेश करूंगा। काजी सौकानी की रूह को बुलाया जा रहा है, काजी सौकानी की रूह को बुलाया जा रहा है, आप क्या करेंगे? मेरी तरफ से आप 1 मिनट, आप अहले हदीस है ना? अहले हदीस है ना भाई? यही एहसान है आपका। ज़ैद ज़मीर साहब, आप अहले हदीस है ना? मैं अहले हदीस आलिम की ऐसे कई बातें पेश करूंगा कि काजी सौकानी की रूह से मदद मांग रहे हैं अपनी किताब की तालीफ के लिए। अपना जवाब नहीं पा रहे हैं तो भाग रहे हैं। आप अहले हदीस मजहब भी छोड़ दें, ऐसी बातें तो आपकी किताबों में नकल की गई है। खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरों को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ बोलिए, जबान से नहीं हारती। मैंने जवाब दे दिया, फिर जवाब सुन ले। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही अशार के अंदर, वो नबी की तरफ मंसूब की, वो शिर्क है। शिर्क है अगर अकीदे से कही। जवाब नहीं हुआ। जिस गौर से फोन किया है वो बिल्कुल नाकाम हो रही है। आप फिर अपनी बात से मजीद साबित कर रहे हैं। हम लोग इस साल को दूर नहीं कर सकते, आप लोग ये साबित कर रहे हैं। खामखा क्यों आप फोन किए नहीं कर सकते? इश्काल तो अबू जहल के, अब इसकी दलील इश्काल अबू जहल के, आप सल्लम जो है अबू जहल मुतमईन नहीं हुआ आप सल्लम के जवाब से, तो ये आपकी दलील फासिद है। ये आप ना कहें कि आप मुतमईन नहीं कर रहे हैं। मुतमईन जो है ना खुदा करता है, हम सिर्फ बात को पहुंचाने वाले हैं। इसलिए आप उलमा से क्यों पूछने के लिए बोले मुझको? क्या दुआ करो करके आप क्या आपने कहा एक आलिम की बात से आप एक आलिम से बात की, बस आप उसके ऊपर कैसे चल गए? आपने बोले ना, मैंने ये कहा कि आपने ये वाकयात क्यों नहीं किताबों तहकीक की, आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर तहकीक तो किताबों से भी आदमी मुतमईन नहीं हो सकता अबू जहल। अरे भाई, मेरे भाई, इमाम ज़हाबी को आप क्या समझते हैं? इमाम ज़हाबी को सिखा समझते हैं कि नहीं? इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। सन 1947 में इंतकाल हुआ है। हाजी इमदादुल्लाह मक्की की फरियाद की इबारत पूछ रहा हूँ। हाजी इमदादुल्लाह मक्की, देखिए बहस कर रहे हैं, फिर मौजू चेंज करते हैं तो उस तरफ मुझे जाने दें, या तो फिर इसी मौजू पे रहें। हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, मेरे प्यारे अबू ज़ैद ज़मीर साहब, हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ये अशार कह रहे हैं। इस अशार को अकीदे के साथ कहना शिर्क है। मैं कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं, लेकिन इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छप चुका है। ये बात उनसे गलती हो सकती है, गलबे शौक में हो सकती है, लेकिन उनका ये अकीदा नहीं था। उनका अकीदा दूसरी किताबों में छप चुका है। आप एक इबारत से क्यों अकीदा अखज़ कर रहे हैं? ये बददियानती नहीं तो और क्या है? ये उनका अकीदा नहीं था जो शेर में इन्होंने कहा। बिल्कुल उनका अकीदा नहीं है। मैं आपको दे सकता हूँ उनका स्कैन कि उनका अकीदा क्या था हजरत का। आपने कहा कि जो 2 शेर हैं नहीं है अशार में, अशार से अकीदा खस कर रहे हैं आप। इतने उसूल तो आप जानते होंगे भाई। मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। आप अशार से अकीदा खस कर रहे हैं। आप मेरी वजाहत आप कर रहे हैं ना, वजाहत मेरी, मैं वजाहत कर रहा हूँ कि नहीं, आप भी उसमें फंसते जा रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया। भाई भाई आप गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, नाराज ना हो। मैं सिर्फ ये मैंने साफ वजाहत से कह था कि आप ये मुझे बताएं कि एक आदमी, हाँ कौन से जमीयत की गुरबा? मैं भाई, आप जमीयत इतना क्यों जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, इतने शदीद इख्तिलाफ है कि जमीयत कहती है कि जमात का अमीर बनाओ, गुरबा कहता है अमीर बनेगा तो कत्ल कर दिया जाए। अपने इख्तिलाफत तो दो करें आप सकते हैं। साहब ठीक है, जबान से नहीं हारती। मैं मौजू पे आ रहा हूँ। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर है, अगर आएंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। कब आएंगे जरा बता दीजिए। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का नाम लिया, फिर पूछते मौजू पे आए नहीं, किसको? यही तो मौजू है। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने कई बातें हैं। अरे मेरे भाई अभी आप एक इबारत पेश किए ना, अभी एक इबारत पेश की, उस पर बात करें। अभी जो इबारत पेश की उस पर बात करें। कई इबारतें तो फिर मैं भी लेके आता हूँ, आप मुझे कल फोन करें, मैं भी इबारतें लेके बैठ जाता हूँ।
اگر عبارتوں سے عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے. بات کرنے کی دیکھیے میں ضمیر صاحب اب جی میری بات سنیں. یہاں پر جو شعر میں نے پیش کیا آپ کے سامنے کتنی بار دو اشعار کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا جی کہ آپ یہ بتائیے اس میں وہ کس سے فریاد کر رہے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا آپ نے کہا کہ بدیانتی نہیں کرنا اللہ کے واسطے نہ بدیانتی نہیں کرنا, پورا جواب نقل کرنا. اللہ کے واسطے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جواب پورا نقل کرنا. یہ خالی مت کہنا کہ اللہ کے نبی سے فریاد کر رہے تھے. والے لوگ ہیں ہم حنفی نہیں ہیں. ہاں اللہ اکبر. ابھی اس سے بات کریں گے تو پھر ابھی بس جانے دیں. ذرا سنیے نواب صدیق حسن خان کی استاد حنفی چھوڑیے. ہاں بولیے. ہاں اے رسول کبریا فریاد, یہ جو اشعار ہیں آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس میں انہوں نے غلبہ شوق سے یہ کہا ہوگا اور اس میں نسبت اللہ کی طرف شروع سے کہہ رہے تھے, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا لفظ استعمال کر رہے تھے. پھر اخیر میں آپ نے کہا کہ ہاں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی ہے, لیکن یہ غلبہ شوق میں آپ کے کہنے کے مطابق. بالکل عقیدہ آپ کا یہ نہیں, آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, میں بھی آپ کا حوالے دے سکتا ہوں. ارے بھائی ذرا سنو, درمیان میں بولنا ضروری ہے. آپ بھی تو بولتے ہیں مجھے ضمیر صاحب, اصول خالی میرے لیے ہے کیا؟ میں غلط بول رہا ہوں میرے لیے کیا بتائیے آپ مجھے, یہ کون سی بات ہے؟ آپ بولیے. دیکھیے آپ جب غلط بولتے ہیں تو غلط کیا مطلب؟ آپ طے کریں گے کہ اللہ طے کرے غلط صحیح کا, آپ طے کریں گے. میں بھی کہتا ہوں آپ غلط بولتے ہیں. آپ بتائیے, میں صحیح بول رہا ہوں. حد ہو گئی. اللہ طے کرے گا تو پھر مجھ کو فون کیوں کیے صحیح غلط کے لیے؟ صحیح غلط میں تو آپ سے تشریح چاہ رہا تھا, صحیح غلط نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی. میں نے یہ نہیں کہا کہ بتائیے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں چھپائی, یہ واقعہ دوسری کتابوں سے آپ نے کیوں چھپایا. کہاں تشریح کی؟ امام سخاوی کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا, امام بشپل کا حوالہ دیا, آپ نے تشریح نہیں کی اس کی. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ایک واقعے پر آپ نے کیوں اپنا موقف بدل دیا. ہاں بالکل, بس یہ سوال تھا میرا. موقف بدل دیا الحمد للہ موضوع پہ جواب دے دیا. الحمد للہ کیا جواب دیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے ضمیر صاحب ایک بات مجھے بتائیں, اب یہ واقعے کہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا آپ کو. اچھا آپ دیانتداری یہ کریں کہ میں نے دیکھیے آپ بول دیتے نہیں, حد ہے میرے کو بول نہیں دے. آپ میں تو سن رہا ہوں. آپ کو جواب یہ دیا, ہاں میں نے آپ کو جواب یہ دیا کہ وہ میرا موقف بدلنے کا اپنی بات پر اس سے میں نے تحقیق شروع کی. الحمد للہ آج میں الحمد للہ. اب یہ سوال جو میں نے پوچھا تھا آپ سے اب تک کے جو بات آپ نے جواب دیا اس کا اگر آپ اس سے چھوڑ دی بول رہے ہیں آپ نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ انہوں نے غلبہ شوق سے کہا ہوگا آپ کے گمان کے مطابق. گمان نہیں, ان کے عقیدے چھپے ہوئے ہیں بھائی, نہ گمان کیوں, میں یقین سے کہہ رہا ہوں. گمان زن کا درجہ رکھتا ہے, گمان زن کا درجہ رکھتا ہے. آدمی تحریر کر چکا ہے میرا عقیدہ نہیں ہے, تو کیوں گمان پہ لے جا رہے ہیں آپ؟ کیا عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا؟ کیا عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا ہے؟ حد ہو گئی, کہاں کے موضوع کہاں لے جا رہے ہیں. عقیدہ تبدیل ہوتا ہے لیکن آپ اللہ رب العزت کو پتا ہے نا, اللہ رب العزت کو پتا ہے نا کہ عقیدہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں, کہ کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا. جب آپ ضمنی عبارت کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کو, جب اللہ کو معلوم ہے تو چھوڑ دیجیے نا, ہمارے عقیدے بھی بات مت کیجیے, ان کی بھی مت بات کیجیے. تو آپ تو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, ابھی تو آپ نے پیش کیا. ارے آپ دے رہے ہیں غلط آپ عقیدہ پیش کر, آپ کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں عقیدہ؟ علم ہی نہیں, اللہ کو علم ہے, دلوں کا حال کس کو معلوم ہے. تو پھر آپ نے کیسے پیش کر دی عبارت؟ آپ اپنی بات کو خود پس کر رہے ہیں, خود پس رہے ہیں آپ. ان کے دلوں کا حال آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے عبارت کیسے پیش کی؟ ایک منٹ, آپ اس کا ہے دلوں کا حال ان کے اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کو معلوم تھا؟ کہ امداد اللہ مکی مہاجر جب یہ شعر لکھ رہے تھے ان کے دل کا حال کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو معلوم ہے؟ نہیں بولے نا آپ, اس کو جواب دینا مجھے. بحث تو فجر تک ہو جائے گی حضرت, آپ کے ساتھ بولتا رہا ہوں, بحث تو فجر تک ہو جائے گی الحمد للہ. حد ہو گئی. ابھی آپ نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, تو پھر آپ نے اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑا اس عبارت کو, کیوں نہیں چھوڑا اللہ پر؟ کیوں آپ نے عقیدہ اخذ کیا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے؟ کیوں اخذ کیا آپ نے؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے. میں نے جو بات اصول توڑ رہے ہیں آپ. ارے اللہ کے بندے سنو, ذرا سنو. عقیدہ اخذ کرنا عبادتوں سے کہتے ہیں علم اللہ کو ہے دل کا, علی مجاز صدور اللہ ہی ہے نا, تو پھر چھوڑ دو اللہ پر. عبارت پر حکم لگائیں گے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ بولنے نہیں دے رہے. ایک منٹ, عبارت حکم تب لگائیں گے جب وہ کہہ رہا ہو کہ یہ میرا عقیدہ ہے. جب وہ کہہ رہا ہے دوسری کتابوں میرا عقیدہ نہیں ہے, تو آپ عبارت پہ کیوں حکم لگا رہے زبردستی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب آپ سے گفتگو کی
آپ موضوع نہ چینج کریے، موضوع نہ چینج ابھی میں نے آپ کو یہی موضوع ہاں، امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نقل کی ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں بار بار آپ کے ہاتھ پہ جوڑ کے کہوں کیا کہ اگر انہوں نے عقیدے کے ساتھ یہ بات کہی ہے تو شرک ہے. یہ عرفن بولا جاتا ہے، ہاتھ جوڑنا عرفن بولا جاتا ہے، ہاتھ بولنا عرفن بولا جاتا ہے. نہیں، آپ بحث نہ کریں. ہاتھ جوڑنا عرفن بولا جاتا ہے، آدمی ہاتھ جوڑتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اب میری بات مان لیں. عرفن کا کوئی لفظ حد ہو گئی. آدمی بولتا ہے پلیز بھائی میری بات سن لیں، آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ہاتھ جوڑ کے عقیدے کے ساتھ ہاتھ جوڑ رہا ہے. آپ کہاں لغت کو اور پھر عقیدے میں فٹ کرتے ہیں یار. کیسے جوڑتا ہے ہاتھ جوڑ کے؟ وہ زید ضمیر صاحب ایسے تو بہت وقت ہو جائے گا. آپ نے امداد اللہ مکی مہاجر، اصل میں آپ کی دیکھیے، میں آپ برا نہیں ماننا، بڑے ہیں ماشاء اللہ، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں ابھی، اور میں کالج اسٹوڈنٹ ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں. میں نے MBA کیا ہے مارکیٹنگ میں، ٹھیک ہے، انگلش پڑھا ہوا ہوں. لیکن میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا بھائی، خالی آپ سے بہت گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جب یہ معلوم پڑ گیا کہ یہ واقعہ دوسری کتابوں میں بھی ہے تو ایک بیان آپ اس سے بھی کر دیتے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، پہلے اسلاف نے بھی اس واقعات کو بیان کیا ہے. آپ نے ایسا نہیں کیا. میں اس کے لیے آپ کو کیا تھا. آپ کی کتابوں میں نے جب جواب دے دیا ہے اس میں، آپ نہیں آپ جواب آپ جب ویڈیو پہ دیں گے نا بھائی، جیسے آپ نے ویڈیو پہ دیا اس سوال پہ جواب، تب جواب بنے گا. آپ ویڈیو پہ میری تمہاری بات ہوئی نا، آپ ویڈیو پہ اس کا جواب دینا کہ یہ واقعہ پہلی کتابوں میں ہے، میرے علم میں نہیں تھا. جواب دیا میں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. ویڈیو میں آپ یہ بات کہیں کہ بھائی یہ واقعہ دوسری کتابوں میں ہے، آپ کہیں گے بولیے کل ویڈیو ریکارڈ کریں گے آپ اس واقعات پہ. میں نے اس عالم کے جواب پہ بات کی اور میں نے بالکل شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے عبارت سے عقیدہ فٹ کر دیے، مجمع کو ہنسا رہے ہیں. یہ کہاں کی دیانت داری ہے؟ اب آپ ایک ریکارڈ اور کر لیں. یہ مجھ کو بتائیے کہ ان دو اشعار میں جب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلبہ شوق میں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، تو کیا غلبہ شوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے کو آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، غلبہ شوق میں اختیاری نہیں ہوتا، بے اختیاری جملے پہ کوئی حکم نہیں لگتا. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ویسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. غلبہ شوق میں آدمی ایسا کہہ سکتا ہے، اور غلبہ شوق اس کو کہتے ہیں جس میں اختیار نہیں ہوتا آدمی کا، بغیر اختیار کے کہتا ہے تو اس پہ حکم نہیں لگایا جاتا. خواب میں آدمی کوئی چیز دیکھ لے تو بغیر اختیار ہوتی ہے، جیسے آپ اشرف علی تھانوی کا جملہ پیش کرتے ہیں کہ غلبہ شوق میں لکھی ہے نا، کیا پورے اشعار غلبہ شوق میں لکھی ہے. ایک منٹ میرے بھائی ابو زید، میری بات میری ایک بات ایک آدمی اگر یہ کہہ دے میرا عقیدہ ہے، ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے نا ابو زید ضمیر صاحب، ایک آدمی کہہ رہا میرا عقیدہ نہیں ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے، وہ کتاب لکھ رہا ہے اس پر، تو آپ کیوں اس کا عقیدہ زبردستی بنا رہے ہیں؟ عقیدہ اس کو کہتا ہے. ہاں میں آپ کو اسکین دے دوں، امداد اللہ مکی مہاجر کا اسکین دے دوں آپ کو، آپ اس کو پڑھ لیں. ہاں تو ابھی تو میں پوری آپ بول رہی پڑھ کے سنائیے نا، پڑھ کے سنائیے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، میرے پاس عبارت ابھی نہیں ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو مفہوم بیان کرو نہیں بیائی عبارت پڑھی، بیائی عبارت تو میرے پاس کتاب ہاتھ میں ہوگی تو پڑھوں گا نا. یہ کون سی چیز ہے یار؟ آپ واٹس ایپ پہ کہاں سے بھیجیں گے؟ واٹس ایپ پہ اسکین لے کے بھیجوں گا، میں نیٹ سے نکال کے بھیجوں گا. کیا ابھی پڑھ کے سنائیے مجھ کو. سامنے کتاب نہیں آپ کی؟ میرے سامنے کتاب کا، میں تو باہر ہوں، گھر سے باہر کھڑا ہوں بھائی، میرے سامنے کتاب تھوڑی ہے. آپ کو جو یاد ہے وہ جملہ بتائیے، کیا آپ کے ذہن میں بہترین جملہ کیا ہے؟ بہترین جملہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. عبارت تو آپ یہ ضد نہ کریں کہ عبارت ہاتھ پہ لے کے پڑھی جاتی ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. عبارت یہ اب امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کا صاف کہنا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی کو ذات میں، صفات میں یا عبادات میں شریک کرنا شرک ہے، اور کسی کا پکارنا یہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرکی ہے. تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ شرک ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور سے مدد مانگے، کسی اور کو حاجت روا سمجھے، کسی اور سے جو ہے یعنی عقیدہ رکھے کہ یہ بھی میری مدد کر سکتا ہے، یہ بھی آ سکتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کوئی بھی ہو، مطلب کسی میں سب آگے. یہ عقیدہ ان کا بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بولیں گے ہاتھ جوڑنا منع ہے، بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت آپ ایک عبارت سے عقیدہ اخذ نہ کریں، یہ اصول کے خلاف ہے. آپ نے اس کو بتا دیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے جی کہ اللہ کے سوا آدمی کسی کو پکارے، اس کو فریاد کرے تو یہ شرک ہے ان کے نزدیک. صحیح ہے؟ عقیدے کے ساتھ نا یار ابو زید ضمیر بھائی، عقیدے کے ساتھ نا. زبانی جملوں کا اعتبار تب ہوتا ہے جب آدمی عقیدے سے کہے. عقیدے کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن آپ نے پڑھا ہوگا ماشاء اللہ، مجھے بات سنیں،
किसी के साथ? कुरान करीम में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ने फरमाया जब आदमी को खतरा हो अपनी जान का, आप अगर वो जवाब नहीं देंगे तो मेरी तशफ़ी कैसे होगी? तशफ़ी आपकी इसलिए नहीं होगी कि आप जो है, आपको थोड़ा सा अनानियत का मसला है, बहुत लोग आपके दर्द सुनते हैं, जवाबात सुनते हैं, तो ये अनानियत का मसला है। शेख अनीस साहब बैठ के कहते हैं कि नाबालिग बच्चे पे गुस्ल वाजिब नहीं है। अनानियत कह सकते हैं तो मैं आपको हसद भी तो कह सकता हूँ। बिल्कुल हसद नहीं है। हसद तो मुझे इससे है कि आप एक हक बात के खिलाफ जो है बातिल बात पेश किए और कहे कि मेरी ये तहकीक है, 4 लोग हंस रहे हैं शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर उस बयान के अंदर, तो मुझे बताइए क्यों नहीं हंसेंगे? तो आप बताइए, आप झूठ बोल के बददियानती करके लोगों को क्यों हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इमाम शखावी रहमतुल्लाह अलैह पे भी आप बहुतान बांधे, नवाब हसन खान पे बहुतान बांधे, इमाम बशकोल पे बहुतान बांधे, आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को बयान करते? अब तक नहीं जवाब। इमाम ज़हाबी को तो आप इब्न तैमिया का शागिर्द है ना, वो तो क्यों उनके तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को बयान नहीं करते? टॉपिक छोड़ रहे हैं फ़ज़ाइल अमाल को लेके आप मेरी सुनिए, मेरी डेढ़ घंटे की यूट्यूब पे क्लिप है फ़ज़ाइल अमाल पर, आप देख लें एक बार उसको। एक मश्क कीजिए सिर्फ आप, एक मौजू पे रहना। एक मौजू पे ही हूँ मैं बिहम्दिल्लाह। आप इसकी आप अकेले नहीं, आप तमाम लोग एक मौजू पे रखने की कोशिश कीजिए, तो फिर अहले हदीस आपकी बात सुनेंगे। अच्छा। अभी तो सुनने की भी कोई तैयार नहीं। अच्छा, लोग तोड़ के जा रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, आपने कयास कर लिया? कयास तो आपकी नजदीक शिर्क है, कयास कैसे कर लिया? कयास किसको कहते हैं आपको मालूम है? अल्लाह अकबर, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। चलिए मैं सुनो, कयास को अब्दुल कादिर जिलानी ने अकल से शुमार किया। आप लोगों से बात करके हम लोगों की मौजूद चेंज न करें। अबू ज़ैद ज़मीर हो जाती है। असल में अगर आप में से आप मुझे मुतमईन वक्त जवाब दे दिए होते, सुनिए, तो आप अब तक फोन रख दिए होते, लेकिन आप मेरी बात से परेशान हो गए, इसलिए आप फोन नहीं रख रहे हैं। तो हम लोगों को हिल्म की तरबियत नहीं होती। हिल्म की तरबियत आपको इसलिए नहीं होती है, अनानियत का मसला होता है भाई, और कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ आप नहीं होते तो, आप लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तरबियत का जरिया है कि कैसे लोगों को। ठीक है, वो तो हमारे पर भी फिट हो रही है कि आप लोग गाली दे रहे हैं, सरेआम बैठकर आप शेख ज़करिया पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम हिल्म कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। एक अदमा आदमी आज खड़ा हुआ आपको सवाल पूछने के लिए, आप तो मजमे के सामने मजाक उड़ा रहे हैं। मजमे के सामने आप मजाक उड़ा रहे हैं। हिल्म वाले हम हुए कि आप हुए? हम लोग सटपटाए करें ना बात इस पे। मजमे के सामने आप मजाक उड़ा रहे हैं देवबंद का, हिल्म वाले हम हुए कि आप हुए? फिर मौजूद रहते हैं आप की बातें लोगों के सामने आ रही हैं तो आप लोगों का दिल जलेगा नहीं? भाई झूठ बातें आएंगी तो दिल तो किसी का भी जलेगा, मेरे नबी का भी दिल जलेगा। झूठ आदमी फैलाएगा तो मेरा क्या, सबका जलेगा। इमाम ज़हाबी को आप छोड़ रहे हैं, इमाम बशकोल को छोड़ रहे हैं, इमाम सखावी को छोड़ रहे हैं, नवाब सिद्दीक हसन खान ने ये बात लिखी है, ये पेट पर फेंकने वाला वाक़या, आप हदीस छोड़ दें? आपके साथ में हद हो गई। हम आपको पकड़ रहे हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप बोल रहे हैं हम भी डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे। हाँ, इस इबारत का जवाब सुनो, इस इबारत का जवाब मैंने आपको रिकॉर्ड हो गया है, सैकड़ों मरतबा मैंने किया। इस इबारत, अगर ये इबारत आदमी अकीदे के साथ कहे, अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है। अबू ज़ैद ज़मीर साहब अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है, अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है, अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है। कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं? क्यों आप मुगालता दे रहे हैं? ये जो इबारत क्या हो गया आपको? दो चीजें होती हैं, आप लोगों को अभी तकसीर के उसूल भी मालूम नहीं है। सुनिए, ठीक, उसूल सुनाइए अभी। एक होता है आदमी के ऊपर हुक्म लगाना और एक होता है उसकी बात पर हुक्म लगाना। हाँ, यहाँ पर मैं जो अब तक आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने ये पूछा कि इस इबारत में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। इस इबारत पर आपने कहा कि उनका जो है ये अकीदा नहीं था और उनका अकीदा उनकी दूसरी किताब में है, ये उनका अकीदा नहीं है। मतलब ये जो अकीदा में बयान, ये जो बात बयान हुई है अकीदे की नहीं, ये जो दोनों अशार हैं, जो दोनों अशार हैं, क्या ये कुफरिया शिरकिया अशार हैं कि नहीं? अल्लाह के बंदे, अकीदे के साथ कहा जाए तो कुफरिया शिरकिया अशार ही हैं। फिर आपसे कह रहा हूँ मैं बार-बार, क्यों आप बार-बार मुकालता होता है? हाँ, आपने कहा ना, दिल के हाल किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम है ना। उनके अकीदे जब सब गए हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि उनका अकीदा सही? अशार तो अकीदे के साथ कहे जाए शिर्क है, और ज़ौक और शौक में जो अशार कहे जाते हैं उनकी कोई तर्जुमानी नहीं होती। आप कहाँ जा रहे हैं? इन अशार के माना नहीं है जी, ये अशार बेमाना है।
میں یہ بول رہا ہوں اشعار بے معنی آپ عقیدے آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں نا کفر و شرک کا. اس کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی آپ بول رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں ترجمانی میں آپ کو ایک مثال دے دوں شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں سیب کیسا میٹھا ہے؟ معلوم ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں سیب میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ ترجمانی کر سکتے ہیں سیب کی مٹھاس کی ترجمانی. آپ مثال دیے تھے تو کہ سمجھ میں آئے. تو اللہ اکبر. سیب کھانا ذوق سیب میں کس طرح کی مٹھاس ہے آپ ترجمانی کر دیں. میں آپ کو قلم دیتا ہوں پیپر دیتا ہوں اور آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں کہ سیب کی مٹھاس اور آم کی مٹھاس میں فرق ثابت کر دیں. بھیا ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی. وہ تصوف کی باتیں ذوق سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ترجمانی نہیں ہو جائے گی. فریاد کرنا وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. نبی کو فریاد کرنا عقیدے کے ساتھ میں شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے. آپ نے دونوں اشارے سے آپ نے بتا دیا. عقیدے کے ساتھ کہنا شرک ہے. اگر عبداللہ مکی مہاجر کا وہ عقیدہ تھا جو اشعار میں ہے تو انہوں نے شرک کیا ہم ان کو چھوڑتے ہیں. لیکن جب ان کا عقیدہ دوسری کتابوں میں چھپ گیا ہے تو آپ ایک عبارت سے کیوں عقیدہ خس کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے اتنی موٹی بات آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو عبارت وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عبارت صحیح ہے کہ غلط میں نے بتا دیا. وہ عبارت کا معنی آپ امداد اللہ مکی مہاجر سے ہی پوچھ سکتے ہیں. اس لیے کہ ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی تو آپ ترجمانی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے یار. نہیں یعنی جب میں نے کہہ دیا ابو زید ضمیر صاحب ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی بھائی تو آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ وہ ذوق میں ہے یہ بتائیے. تصوف کی کتاب لکھی ہے. نہیں یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اشعار لکھے ہیں. آپ جب صرف ذوق کر رہے ہیں آپ کو کس نے بتایا وہ ذوق میں لکھے ہوئے؟ اس لیے امداد اللہ مکی مہاجر نے دوسری کتابوں میں اپنے عقیدے واضح کر دیے. ذوق میں لکھا آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے بندے آپ کو کس نے بتایا عقیدے میں لکھا ہے؟ چلیے بتائیے. میں نے نہیں کہا کہ عقیدے میں لکھا ہے. تو الزام کیسے لگا رہے پھر کفر شرک کا؟ میں نے نہ عقیدے میں کہا نہ تصوف میں. میں نے کہا جملہ سی کہ غلط ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جملے کی ترجمانی نہیں کر سکتا میں. وہ تو امداد اللہ مکی مہاجر بتائیں گے. بات عقیدے کی چل رہی ہے تو عقیدہ ان کا چھپ چکا ہے. ایک منٹ میں نے کہا عقیدے میں لکھا ہوا ہے. ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ حکم لگاؤ. لکھا ہوا ہے آپ نے کہا حکم لگاؤ. آپ نے کہا نا کہ یہ جو عبارت ہے یہ عبارت صحیح ہے کفریہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. اللہ کے بندے اب آپ اچھا چلو ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دوں. آپ بتا تو آپ کو کس نے بتایا عقیدے میں لکھا ہے؟ میں نے بولا بھی نہیں نا عقیدے میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی میں نے کہا عبارت پر حکم لگاؤ. مطلب آپ ایک منٹ. اچھا عبارت سے حکم کسی عبارت سے حکم لگا کے شخصیات کا عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں تو میں عبارت حکم لگا دیتا ہوں. چلو عبارت پر تو حکم لگتا ہے. میں عبارت پہ حکم لگاتا ہوں لیکن کیا کسی ایک عبارت پر حکم لگا کے اس پوری شخصیات پر حکم عائد ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کے اصول سے بیان کر دیں میں عبارت پر بھی عقیدہ لگا دیتا ہوں. چلو میں نے شخصیت کے بارے میں بات ہی نہیں کی ابھی تک. دیکھو مجھے ضمیر صاحب زبان ہر چیز کے بارے میں عبارت جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کی ہے یا نہیں. عبارت میں جو لفظ ہیں لفظ بھی لفظ دیکھا جائے ترجمانی کی جائے لفظ بھی لفظ کی تو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ نبی کی فریادرشی کر رہے ہیں. مجھے بھی نظر آ رہا ہے فریادرشی کر رہے ہیں. لیکن جب یہ بات عبارت سے خالی ہو جائے گی تو عبارت میں تو واقعی میں ہماری نظر میں آ رہا ہے کہ شرک ہے. لیکن ہم اس سے امداد اللہ مکی مہاجر پہ شرک کا الزام نہیں لگا سکتے. آپ نے دے دیا جواب کافی. جی اچھا ماشاء اللہ. میں نے تو یہ بھی جواب دیا نا کہ ان کے عقیدے چھپ چکے ہیں کتابوں میں. آپ اس کو واضح کریں لوگوں کے ساتھ. کافی نظر آ رہا ہے کہ شرک. ارے بھائی عبارت پر شرک کا الزام ہو جائے گا شخصیات پہ کیسے لگے گا؟ کیوں آپ کی بات ہی نہیں تھی. یہ تو سمجھ میں آدمی کے پورے آدمی کا عقیدے واضح کتاب میں لکھے ہیں. مجھے جمیل صاحب تھوڑی سی عقل سے بات کریں. آدمی کی کتابیں پوری کتاب آپ نے عقیدے پہ لکھی ہے تو آپ کیوں ایک عبارت کا عقیدہ اخذ کر رہے ہیں؟ اس سے کیوں نہیں اخذ کر رہے ہیں کتاب سے؟ کیوں نہیں اخذ کر رہے ہیں؟ یہ بددیانتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو دیوبند سے بغض ہے حضرت اس لیے آپ نے ایک عبارت سے عقیدہ اخذ کیا ان کی کتابوں سے نہیں کیا. آپ کا باہر بولیے بولتے رہیے. ہاں نہیں میرا کیوں نکلے گا؟ کیوں نکلے گا؟ دیکھیے آپ نے جواب بے اصولی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے دے رہا ہے کہ ان دونوں عبادتوں میں شرک ہے. عبارتوں میں شرک ہونے سے تم کو دکھائی دے رہا ہے شرک ہے تو کیا شخصیات پہ شرک کا الزام لگاؤ گے جب اس کا عقیدہ لکھا جا چکا ہے؟ تو میں کہتا ہوں عبارت میں شرک ہے. عبارت میں شرک کیا امداد اللہ مہاجر مکی بھی مشرک ہیں؟ آپ بتائیں. میں نے شخصیت کے بارے میں بات ہی نہیں کی. اس کے لیے الگ موضوع ہے. الگ موضوع نہیں ہے. آپ جب آپ عبارت پڑھ رہے ہیں تو کس کی پڑھ رہے ہیں؟ امداد اللہ مکی مہاجر کی عبارت پڑھ رہے ہیں نا. کس کی پڑھ رہے ہیں؟ عبارت کے بارے میں پوچھنا تھا آپ نے جواب دے دیا.
जवाब दे दिया मैंने, जवाब दे दिया। हजरत आप तशफ़ी कर लें अपनी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तहकीक करें। शेख अनीस साहब जैसे लोगों को आप बिठा रहे हैं, जो लोगों को ये फतवा दे रहे हैं कि बगैर गुस्ल के आदमी को दफन कर दो, नाबालिग को, ये शेख अनीस साहब फतवा दे रहे हैं आपकी बाजू में बैठकर। इस मौजूद पे बात ही नहीं मेरी। क्यों मौजूद पे बात नहीं? आपने क्यों नहीं करेक्ट किया भाई? मौजूद पे बात थी कि अल्लाह के नबी का दीन ही नहीं, आपको समझाना नहीं चाहिए था शेख अनीस साहब आपकी बात गलत है। उसके लिए अलग कभी बात हो सकती है, अलग बात नहीं, आप उस पर तावील कर जाएंगे। जब हम तावील करते हैं तो आप हमको कहते हैं कि तावील कर रहे हैं। इनकी जो लिखी हुई बात है आपने इसको तस्लीम किया कि आपको भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लिखी हुई जो बात है मैंने तस्लीम किया कि उनका वो अकीदा नहीं है, ये भी रिकॉर्ड हो गया है, मैं दिखा सकता हूँ उनका वो अकीदा नहीं है। आप मुगालता ना दें, और आपने वो जवाब नहीं दिया कि आप जो तहकीकात कर चुके, आप वो पेड़ पे हाथ फेरने वाले वाकयात के मैंने आपको इतने सारे हवाले दिए, आप कल उसको रिकॉर्ड करें कि मैंने शेख ज़करिया पे झूठ बोला था, मुझे मालूमात नहीं है, आप इसको कल रिकॉर्ड कर दें। एक ही चीज में इतना मामला हो गया है। मामला देखिए अब जमीर साहब कितना लंबा कर दिया उसको, कैसा समझा? मैं अकेले बोल रहा हूँ, मैं अकेले बोल रहा था, कैसे भाई अकेला बोल रहा था। एक जमीर साहब मैं अकेले बोल रहा था, अकेले बोल रहा था। कोई आदमी से मुतमईन नहीं होगा, याद रखिए। मुतमईन देवबंद का मदरसा कायम है, तुम्हारे सामने मैं मुतमईन हूँ, तुम्हारे सामने मैं मुतमईन। आप तो कह रहे हैं मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, आपका जो एक शागिर्द है शायद नदीम करके, ठीक है, बुरहानपुर में रहता है, उसने बहुत लोगों को गुमराह किया इस वाकयात को लेके। मैंने जब उनको स्कैन भेज दिया कि भाई अगर ये शिरक है वाकया पेट पे हाथ फेरने वाला, तो इमाम सखावी, इमाम बशकुवल, नवाब सिद्दीक हसन खान और अल्लामा हैशमी रहमतुल्लाह अलैह सब पर इल्जाम लगा। सब मुतमईन हो गए, और सब मुतमईन हो गए, सब मुतमईन हो गए। क्यों भाई, क्यों मौजूद से हट जाते हैं आप? क्यों मौजूद से हट जाते हैं आप? वो क्यों लाए? ये बात हो रही ना, शुरू तो वहीं से हुआ था। ये इसका तो जवाब दिया ना मैंने, इसका जवाब दिया ना मैंने। अकीदे के साथ ऐसा कहना शिरक है, कितनी बार जवाब? आप इसको शुरू में ही बोल देते कि मुझको शिरक दिखता है उसमें, तो इतना मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता। अबू ज़ैद ज़मीर साहब को दिखता है, अबू ज़ैद ज़मीर साहब को दिख रहा है, अबू ज़ैद ज़मीर साहब को दिख रहा है। इसलिए कि मैं शिरक जो है ना शख्सियत पर इबारत से नहीं तय करता, ये उसूल को नहीं मानते भाई। मैं रिकॉर्डिंग सुन लो एक बार फिर से। क्या आप एक बार फिर रिकॉर्डिंग सुनो। आपने कहा आपको भी दिखाई दे रहा है, भी दिखाई दे रहा है। अरे तो आपको दिखाई दे रहा है, हद हो गई, आप सुनिए, हद हो गई ना। अबू ज़ैद ज़मीर साहब रिकॉर्ड तो आप कर रहे हैं ना, तो आप मेरे ख्याल से वो दौर नहीं आ गया है कि अल्लाह ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा इल्म उठाया जाएगा और लोग जो है ना गुमराहों से फतवे मांगेंगे और वो खुद गुमराह होंगे, फतवे देके दूसरों को गुमराह करेंगे। ये वक्त नहीं आ गया शायद, इसी के माना में है मुकल्लिदीन का फतवा देना। अभी मुकल्लिदीन पे आप बात करोगे, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे। बोलिए अब मुकल्लिद फतवा दे सकता है? इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, बोलिए ना। अब मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, इमाम बुखारी मुकल्लिद से फतवा दिया है कि नहीं दिया है? क्या सुनिए, इमाम बुखारी मुकल्लिद से फतवा भी दिया है, फरमाते हैं कि तकबीर जो है ना, तकबीर कहना नमाज के शुरू में फर्ज है। इमाम बुखारी का फतवा है, आप मुकल्लिद भी हैं, इमाम नवाब सिद्दीक हसन खान ने लिखा है। इमाम बुखारी तक मत जाइए, वो बहुत बड़े आलिम थे। हाँ माशाअल्लाह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुकल्लिद फतवा दे सकता है क्या? इमाम बुखारी ने दिया है ना। मैं एक उमूमी सवाल पूछ रहा हूँ, मुकल्लिद फतवा दे सकता है? जाहिल होता है कि नहीं मुकल्लिद? अल्लाह अकबर, ये अब पेश में आ रहा है। अब तो सऊदिया का फतवा सुनो, अब तो सऊदिया का फतवा भी छपा हुआ है। सऊदिया वाले कह रहे हैं कि जो इज्तिहाद का अहल नहीं वो तकलीद करे। दो भाई, जो इज्तिहाद का अहल नहीं वो तकलीद करे। आप अच्छा मुस्तहिद है मुझे ज़मीर साहब, आप मुस्तहिद हैं, आप मुस्तहिद हैं। अब जैसे आप मुस्तहिद हैं, अकीदे में किसकी मुकल्लिद हो? अकीदे में हम, अकीदे में मुकल्लिद होने की क्या जरूरत है? लीजिए। हाँ बोलिए ना, आइए मातरूदी, इमाम मातरूदी पे आइए, इंशाल्लाह बात करेंगे। अकीदे मुकल्लिद होने की क्या जरूरत है? करके क्यों बैठे, मैं आ जाऊंगा। मैं आपसे नहीं, आप असल में रटे रटाए एतराज़ात याद रहते हैं ना इसलिए। जी, आप अकीदे में किसके मुकल्लिद हो? अकीदे में मुकल्लिद होने की क्या जरूरत है? अकीदा तो हमको असहाबे किराम ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया, और उस अकीदे की तशरीहात। मुस्तहिद हो? किसके अकीदे में मुस्तहिद हो? मुस्तहिद क्यों रहेंगे? मुझे ये बताएं अबू ज़ैद ज़मीर साहब, मुस्तहिद का माना इज्तिहाद से, मुस्तहिद जो है ना वो मौसूफ है, इज्तिहाद उसका वस्फ है। अकीदे में इज्तिहाद होता है, अकीदे में इज्तिहाद होता है, अकीदे में इज्तिहाद होता है। आप बोल रहे हैं अकीदे में आप मुस्तहिद हो, मुझे बताया अकीदे में इज्तिहाद होता है? उलमा से पूछो, अकीदे में इज्तिहाद होता है क्या? मुझे जमीर साहब, अल्लाह के बंदे, अकीदे में इज्तिहाद होता है क्या? मुस्तहिद मौसूफ है, इज्तिहाद वस्फ है, और अकीदे में मुस्तहिद इज्तिहाद नहीं करता, शुरू में इज्तिहाद करता है। आपको उसूल ही नहीं पता है। हाँ,
आपको हो गई। इज्तिहाद के मानना आप मुझे मालूम कह नहीं रहे हैं, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं मालूम है, आप अकीदे में मुस्तहिद हो? मुस्तहिद हो? अरे अकीदे में, जब अकीदे का मामला आएगा तो मुकल्लिद, अकीदा तो कुरान और हदीस ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया। उसमें मुस्तहिद तो मुस्तहिद जो इज्तिहाद करता है वो तो फुरू में करता है, अकीदे में क्यों इज्तिहाद करेगा? क्या बात कर रहे हैं मुझे साहब? ना, आपको मालूम ही नहीं इज्तिहाद किसको कहते हैं अभी तक। अच्छा, ये बात बताइए कि आप अकीदे में मुजतहिद भी नहीं है और मुकल्लिद भी नहीं है, सही है? मुकल्लिद, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के आप बंदे। रिकॉर्डिंग के लिए हंस रहे हो, अच्छी बात है। नहीं, बेहमदिल्ला, मैं इसलिए इसलिए हंस रहा हूँ। और आप अगर सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझसे वादा आफ्ताब मुझे कह दें कि आफ्ताब भाई मेरी रिकॉर्डिंग नहीं फैलाना, तो मैं फैलाऊंगा भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके जो एक शख्स हैं, आपके जो एक शख्स हैं, होता है, हाँ, तो फिर उसको ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है हाँ हाँ हमारे बच्चों को तरबियत के लिए इस्तेमाल होगी। हाँ, माशाल्लाह, अच्छी बात है ना, तरबियत हाँ। की होगी। देखिए, उनको देखने मिलेगा कि हनफी हजरात देखिए कॉल करते हैं और एक सवाल का जवाब देने में कितनी देर लगाते हैं और कितनी गैर मुतालिक बातें। इमदादुल्लाह मक्की मुआज़िर रहमतुल्लाह अलैह के का भारत में उन्होंने जो बात कही है वो बात अकीदे से कहना शिर्क है। ये बात मैंने 100 मरतबा कह चुका हूँ कि कितनी मरतबा कह चुका, काउंटिंग भी नहीं किया। मैं बात नहीं करता हूँ ज्यादा फोन पे, लेकिन मैं सोचा कि चलो नहीं, आप बात इसलिए कर रहे हैं, आप बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए आप बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए जो मैंने बात की थी ना भाई, वो सब बजा बात थी, कोई मैंने गलत बात नहीं की, इसके लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं। मान लिया ना, आपने आखिर में मान लिया कि उसमें शिर्क है। अरे भाई, किसी इबारत, आप उसूल बता दें मुझे उसूल बता दें कि कोई इबारत अगर आपको शिरकिया नजर आए, इससे उस इबारत के लिखने वाला मुसन्निफ भी मुशरिक होता है।